सलाम और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। I am Habib Mohana from DA Khan. Currently, I am serving as a associate professor of English at Government Degree College number 3 DA Khan. Basically, I hail from a village-like town or town-like village, Draban Kalan, nestled near the Ko Salman Mountains. اور میرے درابھن کلاں کی خاص بات یہ ہے کہ سرائکی بیلٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا گاؤں جو ہے درابھن کلان وہ پہلا سرائکی گاؤں ہے، اور پھر آپ نیچے آتے جائیں ڈیرسپیل خان اور پھر بکھر، اور پھر if you go towards the east you go towards ملتان and بھاورپور and even to the Indian border، تو یہ ساری سرائکی ہے۔ ہمارا جو درابھن ہے وہ وہاں سے سرائکی شروع ہوتی ہے، اگرچہ وہاں پر پشتو بولنے والے بھی لوگ ہیں۔ most of the people are bilingual, they are fluent in سرائکی، both in سرائکی and پشتو۔ تو میں لکھتا بھی ہوں، I am a fiction writer, I write fiction in سرائکی، اردو and English۔ سرائکی میں میرے 3 کتابیں ہیں، 2 ناول ہیں۔ اللہ لئے سی مونجاں جو کہ پرسکرائبڈ بک ہے، ایم اے سرائکی ملتان میں، بھاولپور میں، اور ڈے خان میں جو ایم اے سرائکی ہو رہی وہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح شارٹ سٹوریز کی میری کتاب ہے سرائکی میں، سیتلاں دے داغ۔ سیتلاں سرائکی میں چیچا کو کہتے ہیں۔ سرائکی میں سیتلاں یا چیچا کے لیے بہت سارے نام ہیں، داتی بھی ہے، سیتلاں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا میرا ناول ہے کھڑی ڈینی ہاں سنیڑے۔ پھر اردو میں ایک میری کتاب ہے ادھوری نیند، اس کو اباسین آرٹس کونسل کی طرف سے ایوارڈ ملا۔ اور میری جو 2 سرائکی کتابیں ہیں ان کو اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے خواجہ غلام فرید ایوارڈ ملا تھا۔ Apart from that, I also write fiction in English, and my short stories are available online and they can be accessed by googling Habib Mohana، اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر۔ اینڈ یہ جو ابھی سال چل رہا ہے تو اس میں میرا پروگرام ہے، انگریزی افسانوں کی میری کتاب آ رہی ہے جس کا نام ہے بوائز آر ہارڈ ٹو وین، اور یہ ایک سٹوری کا نام ہے اور نیٹ پر ہی اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا سرائکی میں ایک ناول آنے والا ہے، تیار ہے انشاءاللہ، آ میرے دیس وچ سرائکی ناول بھی آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی اور کتاب اردو میں شاید آ جائے۔ تو اس کے علاوہ میں مطلب مجھے جو میرے جو ہابیز ہیں، ہابیز یہ ہیں کہ I am a lonely wolf, I love loneliness, I want to be alone, though I appreciate and love my friends and I want to be with them and I want to have a good laughter, enjoy a cup of tea and join them in hotels or somewhere whenever we are free۔ تو اکثر میں جو ہے میرے جو مشاغل ہیں ان میں میری ہابیز جو ہیں ان میں سب سے بڑی جو ہابی ہے وہ یہ ہے کہ میں یوٹیوب پر آڈیو بک سنتا ہوں، ڈاکومنٹری سنتا ہوں، خبریں سنتا ہوں۔ I am sorry, I don't watch Pakistani news, I am sorry۔ سارا دن میں انگریزی سنتا ہوں، اور آڈیو بکس میرا فیوریٹ ہے، وہ میں سنتا رہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ I am lover of nature، اور نیچر میں مجھے جو اپنا دمان ہے، سرائکی بیلٹ جو اس کے 3 حصے ہیں، ایک ہے دمان، ایک ہے روہی اور ایک ہے تھل۔ تو میرا تعلق دمان سے ہے۔ دمان میں 4 ضلع آتے ہیں، ضلع ڈیرسپیل خان، ٹانک، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور۔ اور میں ابھی ڈی خان میں رہ رہا ہوں، وی آر سیٹلڈ ان ڈی خان، بٹ مائی نیٹو ہاؤس، یا جو ہمارا والدین کے گھر ہے، بھائیوں کا گھر ہے، وہ درابھن میں ہے۔ تو جب ہی میں وہاں ڈی خان جاتا ہوں، درابھن جاتا ہوں، تو صبح اٹھ کر جو میں پہلا کام کرتا ہوں، میں اکیلا صبح جنگل میں جاتا ہوں۔ وہاں پر جو ہمارے درخت ہیں، کیکر ہے، کالا کیکر ہے، پھر کیکر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک درخت ہے کریہیں یا کریٹا، اس کے علاوہ کھگل یا فراش جس کو آپ انگریزی میں ہم کہتے ہیں، فراش اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہ میں ان درختوں سے کو دیکھتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، اور وہاں پر جو پرندے ہیں ان سے باتیں کرتا ہوں، اور میں کچھ اکیلا وقت گزارتا ہوں نیچر کے ساتھ۔ اور اس دوران جو ہے وہ میرے دماغ میں کہانیاں بھی آتی ہیں، اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں، درختوں سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ میرا ایک مشغلہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا بہت لکھتا بھی ہوں، اور زیادہ پریکٹیکل بندہ بھی نہیں ہوں میں۔ اینڈ آئی ایم بیڈ ود مشینس، یہ لیپ ٹاپ لگانا، موبائل کے
प्रोग्राम करना, ये चीज़ें भी मुझे अपने बेटे जो हैं वो कर देते हैं। आई एम नॉट गुड विद मशीन्स और ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं इनके साथ। तो बस यही है। हाँ, खास बात यह है कि आई एम वेरी वेरी फॉरगेटफुल पर्सन। दिस कल इज लाइक ए सीव, ये बिल्कुल क्षण पर है। एवरीथिंग आई रीड, एवरीथिंग आई सी, एवरीथिंग आई से, एवरीथिंग आई राइट passes through this skull, this mind, like water passes through sea। जिस तरह पानी चिल्ली में गुजर जाता है, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ता, कुछ पढ़ता हूँ, तो अक्सर मुझे वो भूल जाती है। उसकी एक हुक, एक एको, एक थोड़ी सी गूंज मेरे दिमाग में रह जाती है, कोई जुमले, कोई लफ्ज, एक इम्प्रेशन रह जाता है उसका, लेकिन वो किताब के ज्यादा चीजें मैं भूल जाता हूँ। तो मैं माजरत करता हूँ, मैं हूँ बड़ा फॉरगेटफुल पर्सन। तो बस यही कुछ है। इसके अलावा जब आप हुक्म करेंगे तो मैं अपने टॉपिक पर बात करूंगा। वारिस साहब अनम्यूट करें अपने आप को। क्या मैं जारी रखूं सर? जी सर, आप आगाज कीजिए अपनी गुफ्तगू का। हाँ, तो मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो है कि रोल ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये 5 चीज़ें बनती हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। अगर आप इनमें से एक को ये निकाल दें तो ये डोमिनो इफेक्ट होगा, तमाम आपके जो ज़िंदगी के फील्ड्स हैं वो मुतासर होते हैं, तमाम चीज़ें आपकी मुतासर होती हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड। तो सबसे पहले जो लिटरेचर है, लिटरेचर का लफ्ज़ जो है वो लैटिन ज़बान का लिटरा से निकला है, जिसका माना लेटर होता है, हर्फ इसका मतलब है। तो हरफों से लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ों से जुमले बनते हैं, जुमलों से कहानियाँ बनती हैं, और फिर कहानियों से खुशबू आती है। जिस तरह के शायर ने कहा है कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। तो इस तरह किताबें बनती हैं, फिर लाइब्रेरियाँ बनती हैं और दुनिया के अदब बनते हैं। अब लिटरेचर जो है, इसका बहुत बड़ा अमल दखल है इन तमाम चीज़ों पर, आपकी पॉलिटिकल, माशी और समाजी सूरत हाल पर। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन अगर ब्रॉड करें लिटरेचर की, तो उसमें फ़िलासफ़ी और इकनॉमिक्स और हिस्ट्री भी आती है। अगर नैरो डेफिनेशन अगर हम ले लें तो उसमें सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, और आर्टिस्टिक उनकी वैल्यू है, जिस तरह के आप सब जानते हैं, प्रोज, शायरी, ड्रामा वगैरह है। तो अब लिटरेचर जो है, इसका कौमों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। दुनिया की जितनी पुरानी कदीम कौमें आई हैं, तहजीबें आई हैं, उनमें उनमें से कोई भी कौम ऐसी नहीं थी जिसमें बड़े बड़े राइटर्स ना आए हैं। मतलब आप ले लें, बात असीरियन से ले लें, इंडस वैली से ले लें, आप ले लें बात रोमन से, ग्रीक्स के ले, ग्रीक्स से ले लें, यूनानियों से, तो आते जाएं नीचे तक, आज तक आते जाएं, तो उन कौमों ने तरक्की की है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिक्स की फील्ड में, जिन्होंने लिटरेचर में बड़े कमालात दिखाए हैं। अब हम अगर यूनानियों की बात करते हैं, तो कौन नहीं जानता यूनान को? अफलातून, अरस्तू, दीज आर हाउस होल्ड नेम्स। सुकरात है, और फिर इसके अलावा लिटरेचर में भी बड़े बड़े नाम हैं उनके यहाँ, शायरी में भी बड़े बड़े नाम हैं। तो अब उनकी जो राइटर्स थे, उन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया, और फिर उनके मुताबिक उनमें तब्दीलियाँ आईं। मतलब जो बातें अफलातून ने सियासत के बारे में कही हैं, वो आज भी हम पढ़ाते हैं। उसकी किताबें जो हैं रिपब्लिका पढ़ाई जाती है, उसकी जो डायलॉग्स हैं वो पढ़ाई जाती है। अरिस्टोटल के ख्यालात और दूसरे जो बड़े बड़े लोग हैं, सफक्लिस और ये जो उनके ड्रामाटिस्ट हैं, उनके ड्रामे आज तक हमारे एमए जो सर एमए इंग्लिश है और बीएस इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो अब उन राइटर्स का क्या किरदार था कदीम यूनान को इन शेपिंग एंशिएंट ग्रीस, तो बहुत बड़ा किरदार है। उनके बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि ग्रीक सिविलाइजेशन would have existed without these people that I have just mentioned, अफलातून, अरस्तू, ये जो लोग हैं। फिर उसके बाद आप रोमन्स को देखें, फिर आते जाएं आप मुसलमान दौर में आप देखें, तो अब्बासिया गोल्डन दौर है, तो उसमें देखें दारुल हिकमा है, हाउस ऑफ विजडम है, और क्या क्या तर्जमे किए और कैसे कैसे लोग आए वहाँ पर। तो वो सारा कमाल तो लिटरेचर वाले लोगों का था। अच्छा, उनके तर्जमे जो थे कमाल के थे। तर्जमे उन्होंने ना सिर्फ यूनानी ज़बान से किया, अफलातून, अरस्तू को किया, बल्कि इंडिया से तर्जमे किए, उन्होंने बड़ी बड़ी ज़बानों से तर्जमे किए।
अच्छा, फिर हम अगर आप नजर डालते हैं मॉडर्न यूरोप पर, तो बिफोर रेनेसांस, बिफोर मॉडर्न यूरोप वी हैव डार्क एजेस। तो डार्क एजेस में क्या था? डार्क एजेस और मॉडर्न यूरोप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ राइटर्स का है। ये उस जमाने में राइटर्स नहीं थे, इस जमाने में राइटर आए हैं। तो राइटर्स, मिडिल एजेस में क्या थी जिंदगी? कुछ भी नहीं था, फ्यूडलिज्म था, डार्कनेस थी, कोई रिसर्च नहीं थी, कोई इल्म नहीं था, कोई अदब नहीं था। अदब नहीं था तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट थी वो भी रुकी हुई थी। बस लोग थोड़े थोड़े देहातों में रह रहे थे। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, इतना पैदा करते जितना खुद खाते थे। ट्रेड भी नहीं थी, तो ट्रेड की वजह से डेवलपमेंट भी आती है। तो जब हम देखते हैं कि यूरोप एकदम उभरा है, तो वो कब उभरा है? वो रेनेसां में। रेनेसां मीन रिवाइवल, फ्रेंच वर्ड है। तो रेनेसां कैसे हुआ? इट डिड नॉट हैपन इन वैक्यूम। द रेनेसां जो है, इट वाज काज्ड बाय द राइटर्स। और राइटर्स कौन है? वो शुरू होते हैं मतलब कोपरनिकस से, और फिर ब्रूनो है, बेचारे को जला दिया गया, फिर गैलीलियो है, फिर हम आते हैं बर्तानिया में एक बंदा आया, थॉमस हॉब्स। उसने कहा कि ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बादशाह और लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइन राइट थ्योरी को खत्म करने वाला बंदा। अब उससे पहले क्या था? अब से पहले डिवाइन राइट थ्योरी थी कि बस ये हक है मेरा, मैं करूंगा, बादशाह मेरी मर्जी है। तो उसने डिवाइन राइट थ्योरी को खत्म किया, और फिर उसने कहा कि बस ये कॉन्ट्रैक्ट है लोगों को इसके दरमियान। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा बंदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आता है, नाम स्किप हो रहा है, याद आ जाएगा मुझे, बर्तानिया में। तो उसने कहा कि, फिर भी उसने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा कि ये हक जो है हुकूमत करने का, ये पार्लियामेंट को होना चाहिए। फिर रूसो आया, उसने भी यही बातें की, इस तरह की। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी बला आई, एक ग्रेट जगन्नाथ ऑफ लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, वोल्टेयर। उसने जो है ना चीज़ों को ऐसे ऐसे उसको उनका तज्जिया किया कि एक नए दौर का आगाज हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट वोल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। अब इन तमाम लोगों के कमालात देखें कि उन्होंने उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बुनियाद है इन्होंने रखी। वोल्टेयर मरता है फ्रेंच रेवोल्यूशन शायद 1-2-3 साल पहले, लेकिन वो बुनियाद रख गया। ऐसी बुनियाद रख गया कि वो संभाला नहीं जाता था। वो जो बादशाह था लुई द 14th 16th। तो फिर उसमें हमने देखा कि वोल्टेयर के बाद ये देखें मंटिस्को का क्या कमाल है। उसने सेपरेशन ऑफ थ्योरी पेश की, सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि यार एक बंदा है बादशाह और उसके पास हर किस्म की ताकत है, कि लेजिस्लेटिव भी है और वो एग्जीक्यूटिव भी है और वो जुडिशियल भी है, ये क्या बात है? तो उसने इस चीज को चैलेंज किया और उसके लिए लॉजिकल चीजें दी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मतलब एक लंबी तारीख शुरू हो जाती है यूरोप में। इनकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इनकी वजह से आप देखते हैं वहां पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, फिर इनलाइटनमेंट जिसको हम कहते हैं। इन तमाम इसी वजह से फिर उनकी शुरू हुई कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म अपने तौर पर उन पर जबर भी है, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूरोप ने तो, यूरोप को तो आगे ले गए ना। फिर हम देखते हैं कि जब चीजें आगे जाती हैं तो इसका निज़ाम है बरतानिया का। अब देखें, जमहूरियत जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बरतानिया से आई, तो वहां पर भी राइटर्स का कमाल है। फिर हम देखते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, उसके पीछे भी कोई राइटर्स हैं। फिर हम देखते हैं अमेरिका, उसका जो आइन लिखा गया, उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो वो तमाम एक दूसरे से मुतासर हो रहे थे, चीजें सीख रहे थे, और उनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उनके पीछे राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये ना होता तो यूरोप में इस तरह की चीजें ना होती। अब फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या है? फंक्शन ऑफ लिटरेचर एंटरटेनमेंट भी है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज भी है। हम जबान सीख लेते हैं जब लिटरेचर पढ़ते हैं किसी दूसरे जबान का। खास बात जो है वो ये है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है आपकी। और इससे भी बढ़कर जो चीज़ है लिटरेचर की, वो ये है कि आपके यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी तेज होती है, आप में एक लॉजिकल थिंकिंग आती है, आप क्रिएटिव बनते हैं, आप में क्रिटिकल थिंकिंग आती है। तो जो लोग, द पीपल हु रीड सब्लाइम लिटरेचर, हु रीड जो मतलब संजीदा अदब है वो पढ़ते हैं, तो बड़ी लॉजिकल सोच रखते हैं, वो बड़े टॉलरेंट होते हैं, वो बड़े ओपन हार्टेड होते हैं। तो ये चीजें हैं जो आगे चलकर आपके तमाम जो दुनिया के फील्ड्स हैं, आपकी पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और आपकी जो सोशल, उनको मुतासर करते हैं। मसलन राइटर्स जो हैं, दे पेव वे फॉर साइंस, एंड साइंस पेव्स वे फॉर इनोवेशन एंड फॉर इन्वेंशन। अब देखें, अगर इल्म ना होता तो फिर ये इन्वेंशंस ना होती। अगर इन्वेंशंस जो हैं और इनोवेशन, इट लीड्स
to economic development. It leads to economic prosperity. جب آپ کے پاس انوینشنز ہوں گے, آپ کے پاس انوویشنز ہوں گے, تو آپ کے پاس کیا ہوگی؟ آپ کے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. اب دیکھیں وہ ملک جو سائنس میں آگے ہیں وہ اکنامکلی آگے ہیں. کیوں؟ نئی ریسرچ ہو رہی ہے. امریکہ, جرمنی, دیز بڑے بڑے جو ہیں اکنامک پاور ہیں, پاور ہبز ہیں اکنامک کے, بڑی بڑی اکانومیز ہیں, ان کے پیچھے خاص بات کیا ہے؟ ان کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سائنٹیفکلی ایڈوانس ہیں. وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں, وہ ایک موبائل بناتے ہیں اور وہ 2 لاکھ کا ہوتا ہے, ایک لیپ ٹاپ بناتے ہیں وہ 2 لاکھ کا ہوتا ہے چھوٹا سا, اور ہم اس کے بدلے میں جو ریسورس اکانومیز ہیں ہم ان کو 4 بوریاں دے دیتے ہیں چاولوں کے, یا اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں کپاس. تو اب سائنس جو ہے وہ آپ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا پالشڈ گوڈز یا ویلیو ایڈڈ گوڈز جو ہوتے ہیں وہ سائنس کی وجہ سے بنتے ہیں. اگر سائنس نہ ہو, اب دیکھیں جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, سائنس میں آگے ہیں. ہم ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ ہیں, اس لیے ہمارے ہاں وہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی جتنی کہ باہر کے ملکوں میں. مثلا امریکہ میں جو ایک کسان جتنی 1-2 ایکڑ زمین سے جو چیزیں لیتا ہے وہ ہمارے ہاں وہ 10 ایکڑ والے بھی نہیں لیتے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے سائنس ہے, تعلیم ہے. اب اس کے علاوہ آپ آگے دیکھیں کہ آج کل اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ یہ جو سرکٹس بنتے ہیں یا یہ جو چپس ہیں, جس کو چپس وار بھی کہا جاتا ہے چائنا امریکہ کے درمیان, تو یہ چپس جو بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے سرکٹس, اس میں ساری ٹیکنالوجی ہے اور سائنس ہے. اب اس میں امریکہ بھی پیچھے رہ گیا, اس میں وہ تائیوان اور ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا والے بہت آگے نکل گئے. اب اس میں کیا بات ہے چپس بنانے میں؟ چپس میں وہ جو فیکٹری بناتے ہیں وہ اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے, اتنی ڈسٹ سے اس کو بچاتے ہیں کہ وہ جو فیکٹری بنتی ہے وہ 10 سال چلتی ہے, 15 سال چلتی ہے, اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو کارخانہ ہوتا ہے کپڑے کا, وہ کارخانہ وہ مشینری کپڑے بنانے والی جو انگریز کے زمانے میں ہمارے ہاں آئی تھی وہ آج بھی کام کر رہی ہے. تو وہ جو چپس جو بنتے ہیں سرکٹس, وہ اس میں اتنی زیادہ تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, اتنی زیادہ کہ وہ آپ مطلب اس کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے بعضوں کا. تو یہ جو لٹریچر مطلب ہے ہوتا اس طرح ہے کہ سائنسدانوں کے آنے سے بھی پہلے رائٹرز کو آنا چاہیے, لٹریٹ لوگوں کو آنا چاہیے جو سائنس کے لیے زمین ہموار کرے. مثلا برطانیہ میں ایک بندہ ہے فرانسس بیکن. He was not a scientist, but he loved science. He loved scientific method. He loved scientific way of thinking. تو اس نے کہا کہ مطلب اب دیکھیں اس نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی, لیکن اس نے سائنس کی چیزوں کے لیے, سائنسدانوں کے لیے راستہ ہموار کیا کہ آپ آئیں, آپ چیزیں پیش کریں, ہم آپ کو برداشت کریں گے. اب دیکھیں اس کو برداشت نہیں کیا گیا برونو کو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ تیار نہیں تھے اس چیز کے لیے. رائٹر جو ہے آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ سائنس کی چیزوں کو, ٹیکنالوجی کی چیزوں کو آپ برداشت کریں, ان کو سنیں, ان میں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر کے ساتھ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے انسانوں کی, اس میں سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے لٹریچر کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کی تمام چیزیں رک جاتی ہیں. مثلا دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں آئی کہ اس نے رائٹر پیدا نہ کیے اور ترقی کی ہو, یا ایسے لوگ بھی نہیں آئے کہ انہوں نے رائٹرز پیدا کیے ہیں اور ترقی ساتھ نہ کی ہو. تو آپ کا رائٹر جو ہے وہ آپ کی پیچھے کھڑا ہے, آپ کی بنیاد ہے, آپ اس کی کام کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب لٹریچر میں رائٹرز کی کمال کیا ہوتی ہے؟ وہ معاشرے کو یہ بتاتے ہیں, they pinpoint the faults, they pinpoint the negatives in a society. اب جب رائٹر کسی معاشرے کو کوئی چیز بتاتا ہے کہ تمہارے یہاں یہ غلطی ہے, the people they go berserk, وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, ہمارے معاشرے پر تنقید کر رہے ہو. حکومتیں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اب لٹریچر والے جو لوگ ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں چیزوں کو. اب بہت سارے لٹریچر کے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں لٹریچر والے بندے کو, شاعر کو, فلسفی کو مار دیا گیا, فلانے کو جیل ہوئی, فلانے کو ملک سے نکال دیا گیا, کتنی باتیں ہیں. اب لٹریچر کرتا کیا ہے؟ وہ آپ کو اپنی غلطیاں بتاتا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی ہمیں بری لگتی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اگر وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیتے, اگر وہ امیر سے کہتا ہے کہ تم غریبوں کو حق نہیں دیتے, اگر وہ ایک طبقے کو کہتا ہے, ایک لنگوسٹک گروپ کو کہتا ہے کہ تم دوسرے لنگوسٹک گروپ کو حق نہیں دے رہے, تو یہ چیزیں بظاہر ہمیں بہت بری لگتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ لٹریچر والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہ غلطی بناتا ہے کہ یہ ہے, پھر اس پر بحث ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے ہیں اور پھر اس غلطی کو نکال دیتے ہیں. اب دیکھیں برطانیہ میں جو لیگل سسٹم تھا وہاں کا,
बहुत बुरा था, लंबे लंबे मुकदमे होते थे 20-20 साल तक, लोग बूढ़े हो जाते थे, फैसले नहीं होते थे। तो इसका जिक्र वो ब्लीक हाउस में चार्ल्स डिकन ने किया है। तो अब उसने वहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज किया, तो फिर लोगों ने सोचा, फिर बहसें हुई और फिर उन्होंने उसमें तब्दीलियां लाई। अब एक जमाना था कि बच्चों की चाइल्ड लेबर होती थी बरतानिया में, जो बच्चे होते थे काम करते थे, कारखानों भी काम करते थे और बेचारे मर भी जाते थे ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स। इसके अलावा आप देखें कि चिमनी स्वीप बरतानिया में होते थे, तो वो चिमनियाँ साफ करते थे और जो चिमनी की जो होती है साफ करने वाली जगह, वहाँ पर वो फंस जाते थे। तो फिर एक इंग्लिश शायर था, नाम मुझसे भूल रहा है, तो उसने लिखी थी चिमनी स्वीप एक नज़म। उसने कहा कि ये जो चिमनी स्वीप है वो तो बेचारा मर जाता है वहाँ पर। तो अब लोगों ने उस पर बहसें की और फिर ये किया कि उसने कहा कि चाइल्ड लेबर बुरी है, और आज देखें कि यूरोप में कहीं भी चाइल्ड लेबर नहीं है। अगर इसके पीछे कौन खड़ा है? राइटर खड़ा है। तो ये सोशल डेवलपमेंट जो आई है तो उसके पीछे तो राइटर है। तो राइटर क्या करता है कि वो आपको अपनी गलती बताता है। पहला स्टेप हबीब साहब कैसे म्यूट हो गए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हबीब साहब आप म्यूट हो गए हैं, थोड़ा अपने आप को ऑन करें, अनम्यूट करें हबीब साहब। हाँ हाँ, अब आ गए? जी जी अब आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है। तो अब ये हुआ कि वो जो चाइल्ड लेबर है अगर खत्म हुई है तो उसके पीछे शायर खड़े हैं जिन्होंने चिमनी स्वीप नज़म लिखी है, या औरतों के जो हकूक हैं वो अगर उनमें कोई हमें वहाँ पर इक्वेलिटी आई है, जेंडर इक्वेलिटी आई है, तो उनके पीछे भी राइटर खड़े हैं, उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया। अब राइटर को हम क्या देते हैं उसके बदले में, जब वो एक बुराई को चैलेंज करता है, एक फॉल्ट को पिन पॉइंट करता है? तो पहला कदम ये होता है कि हम वी शो इनडिफरेंस। हम कहते हैं कि बस इसे कहने दो यार, ये कुछ नहीं होता, ये सब पागल है। अच्छा, ये तो मामूली मतलब रिएक्शन है ना। फिर ये होता है कि अगर कोई ज्यादा तनकीद है और हमें ज्यादा बुरी लगती है तो वी रिडिक्यूल हिम, वी लाफ एट हिम। अगर इससे ज्यादा उसने कोई बड़ी गलती की है और बड़ी चीजों को चैलेंज किया है, दैट आर डेयर टू अस, इफ ही क्रिटिसाइज आवर ट्रेडिशन दैट आर वेरी वेरी डेयर टू अस, इफ ही क्रिटिसाइज आवर मोरल्स दैट आर डेयर टू अस, तो हमें बुरा लगता है। तो पहले हम रिडिक्यूल करते हैं, फिर पहले इंडिफरेंस शो करते हैं, फिर रिडिक्यूल करते हैं। ज्यादा ये किया तो फिर उसको हॉस्टिलिटी शो करते हैं, उसको मारते भी हैं। ज्यादा किया तो उसको मार भी देते हैं, और ये सारी दुनिया में इस तरह होता रहता है। तो राइटर्स जो हैं वो आपकी मुआशरे के बहुत बड़े नकाद होते हैं, उनकी नज़र होती है, और वो आपको ये बताते रहते हैं कि ये चीज़ें आप ठीक करो वरना ये चीज़ें नहीं चल सकती। तो अब राइटर का क्या रोल है, पॉलिटिकल रोल क्या है? अब देखें डेमोक्रेसी, अब दुनिया भर की मिसालें ले लें और फिर आप देख लें पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कितने बड़े मतलब कोशिशें की हैं हमारे राइटर्स ने, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कोड़े और सजाएं आप ज़्यादा जानते हैं। फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, हबीब जालिब, इस दस्तूर को, इस सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, और फैज़ अहमद फैज़ लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो अब ये जो हमारे राइटर्स हैं पाकिस्तान या उर्दू के, और हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत कुछ उन्होंने डेमोक्रेसी के हक में बहुत कुछ कहा है। उनमें अशुलाल की एक नज़म है जो उन्होंने शहीद भुट्टो शहीद के फांसी पर कही थी कि लोका सिज पर ना आया, सिज वाल ना आया। तो अब सिज जो है वो जमहूरियत है, सिज वो शहीद भुट्टो है, तो जो वापस नहीं आया अभी तक जमहूरियत, बस हमें एक फेक किस्म की एक शैम डेमोक्रेसी है अभी, वो मतलब उसकी जड़ें जो है वो नहीं बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। मतलब ये तो एक अमल है ना, चलता रहेगा तो होगा, ये नहीं है कि हम एकदम होता है। बरतानिया में भी एक दिन में जमहूरियत ना आई। उनका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वॉलपोल जो था, he was the most corrupt person of UK history। तो अब राइटर आपको क्या देता है? डेमोक्रेसी देता है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड देता है। वो कहता है कि यार चीजों को बर्दाश्त करो। वो आपको ह्यूमन राइट्स देता है, इंसान है, हम सब बराबर हैं। ये जो बातें हैं कि ये नहीं है और वो नहीं है, ये हमारी बातें बनाई हुई हैं। हम खुदा की मखलूक हैं, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो आपको भी अच्छी लगती है, वो एक औरत को भी अच्छी लगती है, एक बच्चे को भी अच्छी लगती है। रिलीजियस टॉलरेंस राइटर्स हमें देते हैं। अब देखें यूरोप की मिडिल एजेस में सबसे बुरी बात क्या थी? रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी। जो प्रोटेस्टेंट्स और फिर कैथोलिक्स इनकी जंगें देखें, और फ्रांस में प्रोटेस्टेंट्स इन फ्रांस प्रोटेस्टेंट्स वर कॉल्ड ह्यूगोनॉट्स।
तो हिगोनॉट्स को अपने वो जो चर्च उनका अपना जो कब्रिस्तान होता था कैथोलिक उनमें वो दफन नहीं होने देते थे। फिर क्या हुआ कि उनको निकाल दिया गया हिगोनॉट्स को फ्रांस से। अब वो फ्रांस से जब निकाले गए तो वो चले गए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जब वो गए तो वो काम वहां पर फ्रांस में वो काम करते थे सोने का, पर जब वहां पर गए तो वो सोने का काम इतना तो नहीं था जितने वो सुनारे वहां पर चले गए स्विट्जरलैंड में। तो उनमें से कुछ लोगों ने घड़ियों के काम में, घड़ी नई नई आ रही थी तो घड़ियों के काम में दिलचस्पी की और वो सुनारे घड़ियों का काम करने लग गए, बनाने के, नई घड़ी बनाना। क्योंकि सुनारे का काम और घड़ी बनाने का थोड़ा सा मिलता जुलता है, बोथ यूज हैमर, बोथ यूज चिजल्स, बोथ जो है वो टिंकर विद मेटल्स। तो अब जो स्विट्जरलैंड की जो घड़ी बनाने की इतनी बड़ी तारीख है और इतनी घड़ी रोलेक्स और मशहूर है, तो उसके पीछे हिस्ट्री ये है कि आपने ह्यूगोनॉट्स को निकाला, फ्रांसीसियों ने, यू लॉस्ट योर टैलेंट, ब्रेन ड्रेन हो गया और आपके वो लोग चले गए और उधर जाकर उन्होंने वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो रिलीजियस टॉलरेंस जो है, आप देखें फिर यहूदियों के साथ क्या हुआ यूरोप में। यहूदी निकले थे 770 AD में, रोमन्स का जब कब्जा हुआ और जो सेकंड टेम्पल था उसको गिराया गया, तो वहां से वो निकले और दे बिकेम ए डियास्पोरा, और वो सारे यूरोप में बिखर गए और कोई भी उनको कबूल नहीं करता था। इधर से मारा उधर से मारा और पोग्राम्स और फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें और बड़े बड़े जुल्म हुए उनके साथ। आखिर में फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी बुनियाद वोल्टेयर था, राइटर था, रूसो था, बड़े बड़े लोग थे, मंटिस्को था, ये लोग थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1800 साल बाद उन्होंने यहूदियों को इंसान समझा और उनको जो है अपने बराबर के हक दिए। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सेपरेशन ऑफ चर्च और इसकी बात की, स्टेट की बात की। सबसे पहले वहां पर औरतों को भी बराबर का शहरी माना गया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो अब ये तमाम अच्छी अच्छी बातें जो हैं ये आई तो इन लोगों की वजह से हैं, राइटर्स की वजह से हैं, जिन्होंने कोई चीज इमेजिन की, कोई विजन था जिनका आने वाली नस्लों के लिए, इंसानों के लिए कोई विजन था। तो ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है, इसके हम अपनी पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, रिलीजियस टॉलरेंस ना होने की जो आखिरी पीक पर जब पहुंचा यूरोप, तो वो हम देखते हैं हिटलर। आपकी सर आवाज नहीं आ रही। हबीब साहब आप फिर म्यूट हो गए हैं। अच्छा, अभी आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो ये रिलीजियस जो टॉलरेंस की कमी जो है उसका जो पीक है हम देखते हैं हॉलोकॉस्ट में, हिटलर के जमाने में, नाज़ीज़म में। तो उसमें क्या हुआ, मतलब किसको फायदा हुआ? कोई फायदा। आबिद हुसैन आप अपने आप को म्यूट करें, मैं मशवर जदून आप म्यूट करें। जी आप बोलें सर हबीब साहब, अब आपकी आवाज खोलें अपनी, जी बोलते रहे आप हबीब साहब। अच्छा, कितना गया? फिर ठीक है, जी जारी रखें, आपकी आवाज आ रही है, जारी रखें। अच्छा, तो इसमें यह है कि अब पाकिस्तान की हम मिसाल ले लें तो रिलीजियस टॉलरेंस हमारे यहाँ थी, फिर ख़त्म हो गई। अब देखें, मैं इसको मिसाल देने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम किस हाल तक पहुँच चुके हैं। अगर आप सेक्टेरियन हिसाब से देखें या कुछ और चीज़ों के हवाले से देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस ना होने की वजह से वो हो रहा है। और जब रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होती, इससे आपका टैलेंट ज़ाया होता है, आपकी ब्रेन ड्रेन होती है, आपके लोग वहाँ से चले जाते हैं, आपकी तालीम सही नहीं कर पाते, आपकी कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होती, आपके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं होती। मुझे पता है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर लोग, कोई घर छोड़कर चला गया है, कोई स्कूल छोड़कर चला गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे यहाँ हुई हैं वो ये हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस हमारे यहाँ नहीं थी। अब हमारे राइटर्स ने, ये नहीं है कि उन्होंने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया, उन्होंने किया है। उन्होंने शायरी के ज़रिए, अपने नावलों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें में की हैं। लेकिन फिर इसमें मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि स्टेट ने इन पर बैन लगा दिया। मतलब फैज़ पर बैन था, उसकी शायरी पर बैन था, अहमद फराज पर बैन था, रेडियो पर नहीं आ सकते थे, कोर्स में आप नहीं पढ़ा सकते थे। तो आप ऐसे लोगों को जब नहीं पढ़ाते तो आप अपनी नस्ल को महरूम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े अदबी वर्से से आप उनको महरूम कर रहे हैं, और उनके सीखने का जो अमल है वो रुक गया ना। मतलब उनकी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होनी थी वो तो नहीं हो रही। मतलब अब ये है कि जब आपने निकाल दिया तो वो अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ सके। अच्छा, इसमें एक खास बात मैं ये करना चाहूँगा कि लिटरेचर तमाम आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करता है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, सोशल भी करता है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि तमाम राइटर्स, तमाम पोएट्स वो पॉजिटिव सोच रखते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले भी राइटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी राइटर है हम उसको मानते जाएं और उसकी बात पर चलते जाएं। नॉट दिस, they had ideologues, they had writers at their back,
Hitler himself was a writer. He wrote Mein Kampf, My Struggle. It is a book, and he is a writer. So what sort of book is this? This is not a part. It spreads venom. तो ये तो बड़ी poisonous है, very lethal है. It is very fatal. It is not good for the people to read. तो अब ये है कि लिटरेचर में हर कौम में, हर जबान में, तो ये राइटर मतलब हमारे यहाँ हर जबान में, हर जगह में नेगेटिव भी आते हैं. अब होता क्या है कि वो जो नेगेटिव होते हैं उससे हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट रुक जाती है. अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम एक नज़म होती है, एक मज़ाक के तौर पर उसको ले लेते हैं कि ये औरत पर उसका मज़ाक, औरत का उसने मज़ाक उड़ाया शायर ने. बड़े मज़े से हम सुनते हैं बाज़ औक़ात कि औरत है और इस तरह है, मज़ाक की बातें सुनते हैं और मतलब ये ऐसी हैं और बातें करती हैं और काम नहीं करती. और अब हम वक्ती तौर पर तो उससे मज़ा ले लेते हैं, लेकिन वो किस तरह के असरात छोड़कर जा रही है हमारे पीछे. तो अब बाज़ चीज़ें हम लाशऊरी तौर पर या मज़े में या ना जानते हुए या जानते हुए कर जाते हैं कि जिसकी हमारी आगे जाकर वो एक बैड रेफरेंस बन जाता है, अच्छा रेफरेंस नहीं बनता. तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं उनके बड़े कमालात हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर जो उन पर बैन लगते रहे तो उसकी वजह से वो उनका जो इल्म है, उनकी बातें जो है आगे तक वो ट्रांसफर नहीं हो सकी. तो लिटरेचर हमको क्या बनाता है? हमें ब्रॉड माइंडेड बनाता है. लिटरेचर हमें टॉलरेंट बनाता है. लिटरेचर मेक्स अस गुड ह्यूमंस. लिटरेचर जो है वो आपको लॉजिकल सोच देता है. अब लॉजिकल सोच बहुत ही जरूरी है. हम बाज़ औक़ात मजाक उड़ाते हैं कि यार ये मंतकी सोच नहीं होनी चाहिए, दिल की बातें भी मान लेनी चाहिए, लेकिन अब लॉजिक जो है आप एक जगह पर खैर छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर छोड़ देंगे, लेकिन अल्टीमेटली लॉजिक विल हेल्प यू आउट ऑफ सो मेनी ट्रबल्स. अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, साइंटिफिक थिंकिंग है, इससे आपके बड़े फायदे हैं. अगर आप कदम फूंक फूंक कर चलते हैं, आप एहतियात करके चलते हैं, तो इसकी ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर, बच्चों पर, हमारे बच्चों पर, आने वाले बच्चों पर बड़े अच्छे असरात होते हैं. तो अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो राइटर्स हैं उनकी मतलब वो चीज़ें बाज़ औक़ात पढ़ाते हैं जो इतनी मतलब जो वक्त हुकूमत होती है वक्त की, उसको फ़ायदा देती हैं, लेकिन वो हमारी आने वाली नस्ल को शायद फ़ायदा ना दे. तो मेरे ख्याल में हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो करिकुलम है, उनमें भी हमें बहुत सोच समझ कर चीज़ें डालनी होती हैं. मैंने खुद करिकुलम बनाया है सराइकी का टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के लिए, और बाज़ औक़ात मैं बुक रिव्यू भी करता हूँ. तो मैं कहता हूँ कि जो किताबें हैं ये बड़ी अहम हैं. तो इनमें वो चीज़ें लिटरेचर से डाली जाएँ जो हमारे सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उसमें जो है अच्छा किरदार अदा करते हैं. वरना ये जो है फिर हम उधर ठहरे रहेंगे, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी. अब लिटरेचर जो है उसमें सोशल डेवलपमेंट का कैसे काम करता है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ. आप अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी दें, अच्छी तालीम दें, अच्छा रोज़गार दें, सिक्योरिटी दें, ये तमाम चीज़ें दें. तो अब अगर आपके पास तालीम है, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, तो अच्छी चीज़ें पैदा करेंगे. आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे तो फिर आपकी जो सोशल स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होगा. अब देखें मोबिलिटी जो है, सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो उन मुल्कों में ज़्यादा है जहाँ पर तालीम ज़्यादा है, जहाँ पर साइंस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है. लोग ऊपर जा रहे हैं, मिडिल क्लास से अपर में जाते हैं और वहाँ पर सोशल मोबिलिटी बड़ी तेज़ है. लेकिन जो ट्रेडिशनल मुआशरे हैं, जहाँ पर इल्म कम है, टेक्नोलॉजी कम है, राइटर का किरदार कम है, मतलब आप सब सारा अफ्रीका की मिसालें दे दें, गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है. या कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर वसाइल हैं, लेकिन फिर भी वसाइल का इस्तेमाल सही नहीं कर सकते. मसलन सब सारा में चाड, माली, मूरितानिया, यहाँ पर तो वसाइल की कमी है. लेकिन अब देखें नाइजीरिया में तो वसाइल की कमी नहीं है, वहाँ तो तेल इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्यों इन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं? कांगो इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, दे हैव एवरीथिंग यू कैन इमेजिन. तो क्यों चीज़ों को नहीं संभाल सकते? ठीक है, इसमें वो उन लोगों का कसूर होगा जो कॉलोनियल पावर्स थे, लेकिन अब इसमें मतलब वो जो राइटर्स हैं वो भी हैं, और फिर जो राइटर्स ने बातें की हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचाई जाती. मसलन नाइजीरिया में एक बहुत बड़े राइटर को फांसी पर लटका दिया गया. नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा मशहूर है. क्या क्या कसूर था उसका? मतलब उसने मिलिट्री डिक्टेटर जो था उस वक्त का, उसको चैलेंज किया था ना, कोई ऐसी बात तो नहीं थी. तो अब ये है कि लिटरेचर
चाइना अगर इतनी बड़ी तहजीब है, बहुत पुराने ज़माने से आप देखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें, वो कहते हैं कि मिसाइल भी उन्होंने बनाया और गन पाउडर भी दिया और सिल्क उन्होंने दिया और कई कई चीज़ें दी, तो उनमें पीछे तो उनके राइटर थे ना। हमारा इंडिया जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन्होंने हमें कितनी चीज़ें दी हैं। मसलन ये जो बटन है, ये इंडियन वैली सिविलाइजेशन की याद है। कपास, अगरचे हम कुछ कहते हैं कि अमेरिका और अफ्रीका में भी थी, कपास हमारे यहाँ से आई है। तो इनमें जो राइटर्स होते हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं, उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। राइटर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। हमने पॉजिटिव जो राइटर हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, जो हमें टॉलरेंट बनाते हैं, ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी चाहते हैं, उन राइटर को हमें पढ़ना चाहिए। अब इसके साथ लिटरेचर के साथ साथ जो हमारा कल्चर है उसका भी बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। अब कल्चर जो है, ये एग्रीकल्चर, कल्चर, कल्टस, ये कार के पीछे लिखा होता है कल्टस, और अंग्रेजी का लफ्ज जो मजहब के लिए, फिरके के लिए इस्तेमाल होता है कल्ट, और एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन, ये तमाम मिलते जुलते हैं। लैटिन में कल्चर जो है वो कल्टीवेट है, जिस तरह आप जमीन को कल्टीवेट करते हैं इस तरह बंदों को कल्चर कल्टीवेट करता है। तो कल्चर के लिए अरबी में जो लफ्ज है वो सकाफत है, सकाफत सकफ है, सकफ छत है। जिस तरह छत आपको बचाती है बारिश से, हार्श वेदर से, इस तरह कल्चर जो है आपको बचाता है, आपको इकट्ठा रखता है। कल्चर एक्ट्स लाइक ग्लू, इट कीप्स सोसाइटी यूनाइटेड, इट कीप्स द पीपल टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। मुश्किल हालात हैं जैसे भी हैं, तो कल्चर के लिए जो लफ्ज हैं दुनिया में, फारसी में इसके लिए फरहंग है, जिस तरह लिखा होता है कि खाना फरहंग ईरान, प्रट है सराइकी में, रशियन में कल्टोरा है, हिंदी जबान में संस्कृति है। तो संस्कृति का लफ्ज जो है वो संस्कृत से निकला है, और उसके माने भी इस तरह होते हैं कि अच्छी चीजें और अच्छी डेवलपमेंट और चीजों को अच्छा करके ले जाना। अब ये जो कल्चर है, इससे आपकी सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। छोटी सी मैं आपको मिसाल लेता हूँ अपनी जिंदगी से। हमारे यहाँ मेले ठेले बहुत होते हैं डीए खान में। बिलोट का मेला होता है, हमारा गाँव द्राबन के करीब एक शाह आलम का मेला लगता था, कुलाची के करीब एक मेला लगता था दीवान शाह बाबा का, सिकंदर एक गाँव, उसमें मेला लगता था। तो अब मेले में क्या होता है, देहात का जो मेला होता है, छोटा सा मेला, उसमें क्या होता है, वो कल्चरल एक हमारी एग्जीबिशन होती है। उसमें तमाम कल्चरल हमारे जो कबड्डी है, नेज़ाबाजी है, ढोल है, झूमर है, नाचना है, तमाम चीज़ें उसमें हम, खाना जो है हमारा जो रिवायती खाना है सुबह, वो तमाम चीज़ें होती हैं। कल्चर का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, और वी एक्सप्रेस आवर सेल्व्स थ्रू आवर कल्चर एंड वी शो आवर कल्चर टू द वर्ल्ड, और लोग आते हैं ये तमाम चीज़ें देखने के लिए। तो अब उस कल्चर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, वो जो मेला होता है बहुत बड़ी बिजनेस होती है, लोग वहां से पैसे कमाते हैं। एक बड़ी सर्कस से लेकर एक छोटा बंदा जो पकोड़े बेचता है या जो सर पर मालिश करता है, ये तमाम लोग उसमें से पैसे कमाते हैं। अच्छा, अब इसमें आखिर में हम ये कहेंगे कि यार ये पैसे निकले तो वो जो मजदूर है या जो फार्मर है, हमारा जो किसान है, उसके जेब से निकले हैं, हमारा जो देहाती बंदा है उसके जेब से निकले हैं। तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या आ गई, तो किसकी डेवलपमेंट हुई है? वो तो उड़ा कर ले गए पैसे, सर्कस वाले या होटल वाले या ले वाले। लेकिन इसमें यह है कि उसने पैसे तो लगाए हैं, लेकिन उसकी एंटरटेनमेंट हुई है। पूरा साल वो बैठा रहता है घर में, वो मेहनत करता है, फसलों के साथ जुड़ा रहता है, बैलों के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा रहता है, तो वो इस मेले में उसकी रिफ्रेशमेंट होती है। ये बड़ा कमाल है उसके लिए, उसको ये मिला है। इस रिफ्रेशमेंट की वजह से वो ताज़ा दम हो जाता है और आगे काम, पूरा साल काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन मेलों में या उर्स जो होते हैं, वो भी इस तरह का एक्सप्रेशन है हमारा कल्चरल। उसमें क्या होता है, वो चीज़ें खरीदता है जो उसकी ज़रूरत की हैं। मतलब वो दरांती खरीदता है, वो अपने लिए कपड़े खरीदता है, वो अपने लिए घर वालों के लिए कोई चीज़ खरीदता है जो उसकी ज़िंदगी में काम आते हैं। ऐसी चीज़ें अगर वो जाकर शहर में आकर खरीदता तो उसका किराया भी लगता, दिन भी ज़ाया होता, लेकिन वो उसको थोड़ी कीमत पर अपने घर में ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो हमारे कल्चरल चीज़ें हैं, इनकी एक ये पहलू भी है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। पैसे की जो है वो एक जगह पर नहीं ठहरता, एक बंदे से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा, वो हरकत में रहता है कल्चर में। फिर कल्चर की आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, कल्चर में का पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। अब वो कल्चर जो ओपन सोसाइटीज हैं, ओपन कल्चर हैं, वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आसान होती है। कल्चर दो किस्म के होते हैं, एक ओपन है या जिसको हम ओपन सोसाइटी कहते हैं, और एक क्लोज्ड होता है। ओपन सोसाइटी वो होती है कि दे एक्सेप्ट चेंजेस, न्यू आइडियाज रेडिली एंड वेरी इजीली। तो कुछ जो है वो रेट्रोग्रेसिव कल्चर्स होते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव होते हैं,
रेट्रोग्रेसिव इतनी आसानी से चीज़ों को कबूल नहीं करता। दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, मतलब अफ्रीका में है, अरब दुनिया में भी है, नॉर्थ कोरिया की मिसाल एरिट्रिया की भी दी जा सकती है। और कुछ प्रोग्रेसिव होते हैं, दे एक्सेप्ट चेंज वेरी रेडिली, वेरी हैप्पीली। अब इसी कल्चर की वजह से हम सर सैयद खान के ज़माने में अंग्रेज़ी तालीम को कबूल नहीं कर सके, कल्चर की वजह से। कि हम कहते थे कि अगर हमने किया तो हमारा मसला हो जाएगा, हालांकि मसला तो नहीं होता। सर सैयद खान बेचारा यही पीटता रहा, वो कहता रहा कि ये अंग्रेजी तालीम ज़रूरत है, ये नहीं है कि आप कल्चर उनका अपनाएं। लेकिन वो हमारे उस वक्त के कुछ कल्चरल ऐसी चीज़ें थीं कि हम वो इतना आसानी से कबूल नहीं कर पाए जितना कि हमारे दूसरे जो लोग थे हिंदू, उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने फ़ायदे भी उठाए। और आज हम देख रहे हैं कि आज गूगल का जो हेड है वो सुंदर पिचाई, और जो पेप्सी है, और फिर व्हाट्सएप है, और फिर वो MS ऑफिस है, इनके सारे हेड जो हैं वहाँ पर हैं। तो अब ये कल्चर, अब हमारा कल्चर इतना रेट्रोग्रेसिव भी नहीं है, हम दरमियान में हैं। कुछ प्रोग्रेसिव होते हैं, आसानी से कबूल करते हैं चेंज को, कुछ रेट्रोग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शनरीज होते हैं। हम रिएक्शनरी भी नहीं है, हम दरमियान में हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को कबूल भी किया और उसका फ़ायदा भी लिया। तो अब कल्चर में ये है कि हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो कबूल करनी चाहिए, और इन कल्चर से फिर आपकी आगे जाकर कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट होती है, आपको इससे फ़ायदा होता है। अगर आप छोड़ दें इन चीज़ों को, मतलब आप कहें कि बस नहीं करते, ये भी नहीं करते, इससे भी कुछ नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होता, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो है वो कल्चर की वजह से हमें बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन हमने फ़ायदे नहीं उठाए। मसलन सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाई अपनी किताब में वो कहते हैं कि अमेरिका जो है मतलब सॉफ्ट पावर है, वो सिर्फ कोर्सिव पावर नहीं है। कोर्सिव तो है, बड़े बड़े टैंक हैं, B-52 भी है, स्टेल्थ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ उसने कहा कि हार्वर्ड एंड हॉलीवुड ये उसकी सॉफ्ट पावर है। वो दुनिया में उनके प्रोफेसर जाते हैं, हॉलीवुड से कितना वो कमा रहे हैं, इंडिया बॉलीवुड से कितना कमा रहा है, कल्चर को कैश कर रहे हैं, इकोनॉमिक। तो हमने मतलब उस तरह ये फ़ायदा नहीं उठाया, अपने कल्चर को दुनिया तक पेश नहीं किया। हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते थे, अपना कल्चर जो कि इतना रिच है, वो इतनी ज़बानें हैं, 72 ज़बानें हैं पाकिस्तान में, कितने कल्चर हैं, कितने खाने हैं हमारे यहाँ, कितने रंग हैं, कितनी खुशबुएं हैं। तो आप इनको आगे लेकर जा सकते हैं थ्रू नावल, थ्रू मूवीज, थ्रू ड्रामास, थ्रू पोएट्री, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज। यू कैन प्रेजेंट योर कल्चर, यू कैन सेल इट, यू कैन कैश इट। तो हमने उतना फ़ायदा नहीं उठाया सॉफ्ट पावर से। अब इस कल्चर से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो टूरिज्म की शक्ल में भी होते हैं। Why European and Western visitors and tourists come in hordes to India and not to Pakistan? टेररिज्म भी अपनी जगह पर है। तो अब टेररिज्म की वजह से हम वो कल्चर अपनी दुनिया को पेश नहीं कर सकते। अगर हम टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कल्चर की बुनियाद पर, हम मतलब ये जो हमारे मेले होते हैं, हमारे और चीज़ें हैं हमारी, मतलब आप बाजार में गुजर जाएं, पाकिस्तान के किसी भी बाजार में गुजर जाएं तो खुद एक ऐसा लगता है कि ये कितने रंग हैं। एक दुकान में आप चले जाएं, कपड़ों की दुकान में, एक जो ज़ेवरात की दुकान है वहां पर चले जाएं, यू विल बी मिसमराइज्ड। द वैरायटी इज माइंड बॉगलिंग, इट इज स्टूपिफाइंग। वी हैव सो मेनी थिंग्स बट वी कांट सेल इट टू द वर्ल्ड, वी कांट शो इट टू द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हम तो फारिग नहीं है, दहशतगर्दी से नहीं फारिग, सियासत से नहीं फारिग, जलसे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन फारिग है भाई के जाए आप अपनी अपनी चीजें पेश करें, ख्वाजा गुलाम फरीद पेश करें अपना कल्चर, भुले शाह रहमान बाबा पेश करें दुनिया के सामने कि यार ये हमारा कल्चर है, हमारे ये मेले हैं, हमारे ये कितने रंग हैं। कौन है फारिग? ये इमरान खान है, और फलां है, और ये फलां है, और ये नवाज शरीफ है, और ये है और वो है। अब देखें हमारी कौम, मैं कहता हूँ, आई डोंट से इट इन द डिस्पैरेजमेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैं कहता हूं कि राइटर्स के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, टीवी पर एक कानून बनाया जाए कि 1 घंटा खबरें होंगी, करंट अफेयर होंगे, फिर 1 घंटा राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो आए, 1 घंटा उनका प्रोग्राम हो, फिर 1 घंटा आए करंट अफेयर पर बात हो, फिर उसके बाद 1 घंटा जो है इन लोगों को दिया जाए, लिटरेट लोगों को, कि ये भी कोई बात करे। अब हमारे यहाँ जो है इतनी कोई बेचैनी है, इतनी बेकरारी है कि हम हर वक्त बस खबरें सुनते रहते हैं। मैं एक मतलब जर्नलिज्म या आई एम सॉरी, नो ऑफेंस, उस हवाले से नहीं कह रहा। आवर जर्नलिस्ट दे आर वेरी वेरी ब्रेव पीपल, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, चैलेंज कर रहे हैं लोगों को, उन्होंने कुर्बानियां हैं, उस हवाले से मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि
थोड़ा ये कल्चर, तारीख, फ़लसफ़ा, सोशल जो हमारी चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजी, इन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। इनको टाइम दिया जाए, ऐसा कोई कानून हो, टीवी पर कानून हो कि 1 घंटा ये लोग आएँ, जर्नलिस्ट 1 घंटा जो है वो हिस्टोरियंस को दे दें, लिटरेचर के लोगों को दे दें। तो अब इस लिटरेचर की वजह से कल्चर की मैं बात जो कर रहा था, तो कल्चर जो है ये हमारा बहुत खूबसूरत है। इसमें इसको हम दुनिया में पेश कर सकते हैं, दुनिया कैश कर रही है अपने-अपने कल्चर्स को। देखें क्लासिकल म्यूज़िक, मोज़ार्ट, विवाल्डी, वो विवाल्डी की 4 सीज़न्स, इस तरह क्लासिकल म्यूज़िक। अब इंडिया है, अपना उनका चीज़ हैं, रहमानोफ, ये कौन है, बॉल्शॉय थिएटर, बैले थिएटर जो है उनका रूस का, कितनी चीज़ें और कितना नाम है उनका, लोग सुनते हैं टिकटें। यूरोप में जो सबसे महंगे टिकट है वो है ओपेरा का। ओपेरा इज अ ड्रामा इन विच द डायलॉग्स आर सung। तो ओपेरा जो है वो लोग जाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं लोगों को कि यार ये चीज़ है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हम तो बस रुताना जलसे हैं और ये करो और धुआंधार है और ये है और वो जो इस तरह की चीज़ों पर हमने वक्त लगा लिया। तो अब ये जो कल्चर जो है उसका फिर नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव भी है। एवरीथिंग इज नॉट गुड इन द किंगडम ऑफ कल्चर। कल्चर में नेगेटिव भी चीज़ें हैं। देयर आर थिंग्स आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर। और हर कल्चर में अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। मतलब बटेर भी लड़ाते हैं कल्चर में। औरत का को हम किस नज़र से देखते हैं, एक जो ट्रेडिशनल माइंड सेट है हमारे यहाँ, दे लुक डाउन अपॉन वुमेन एंड देयर रोल। तो अब कल्चर जो है उसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो कल्चर की जो हमने पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लेनी है। ये नहीं कहना कि ये मेरा कल्चर है और मैं प्राउड हूँ इसका, बदला लेना मेरा कल्चर है और लड़ाई भी मेरा कल्चर है और औरत को घर में मारना ये भी कल्चर है और बिकॉज इट माय कल्चर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। नो, कल्चर हैज positives, culture has negatives, it has merits, it has demerits. We should be proud of our beautiful things, और जो हमारे कल्चर में नेगेटिव चीजें उन पर तनकीद करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ना चाहिए। तो जो कल्चर है और लिटरेचर है, ये हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हमने ना लिटरेचर को ऐसे इस्तेमाल किया है, राइटर्स ने बड़े कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर राइटर्स को हमने आगे नहीं आने दिया, रोक देते हैं क्योंकि हमें खतरा है या कुछ तबकों को खतरा है। और जो कल्चर है उसको भी हम आगे नहीं आने देते। हम कहते हैं कि ये भी नहीं आना चाहिए, या बल्कि अनकॉन्शियसली या जानते हैं या नहीं जानते, हम इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अब कल्चर और लिटरेचर ये भी बड़े इंटर रिलेटेड हैं, ये भी एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। मतलब लिटरेचर कांट बी क्रिएटेड इन ए वैक्यूम। आप ऐसे हवा में नहीं कर सकते, आपकी कोई बुनियाद होनी चाहिए, आपके पास कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए, आपके पास कोई क्विजीन्स, खाने, कपड़े, कोई रंग, कोई खुशबुएं, कोई रोशनियां, ये चीज़ें होनी चाहिए जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। मतलब अंग्रेजी शेक्सपियर would not have written these beautiful dramas without English culture। तो वो जो इंग्लिश कल्चर है उसके यहाँ, जिसको वो मैरी इंग्लैंड कहते हैं, और वो टेंशन का ज़माना नहीं था, वो बड़ा गुर्बत दी थी, लेकिन लोग अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु वुड सिंग विद मी, मतलब इस तरह की बातें। और तो उनने अपना कल्चर जो है वो, शेक्सपियर जो है वुड नॉट हैव रिटन विदाउट इंग्लिश कल्चर। टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, इन लोगों ने, चेखोव वुड नॉट हैव रिटन विदाउट रशियन कल्चर। ख्वाजा गुलाम फरीद सराय की कल्चर के बगैर उसने नहीं लिखा होता। तो ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कि वो जो गावी लसड़ी है, वन पीसू गावी लसड़ी, वन पीसू गावी लसड़ी है, घिन अपने सोने सही वे कनु, एरोही बहु मन भावनी है, एरोही बहु मन भावनी है, वन पीसू लस्सी गावड़ी है, एरोही बहु मन भावनी है, वन पीसू लस्सी गावड़ी है, घिन अपने सोने सही वे कनु। तो मतलब वो जो हमारे कल्चर के रंग हैं, इनको हम कैश कर सकते हैं, इनके हम इकोनॉमिक फायदा ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। तो अब मैं बात यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, इनको तवज्जो दी जाए, कल्चर को, लिटरेचर को। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस पर सेमिनार्स हों, प्रोग्राम हों, इनको राइटर्स को, और जो कल्चरल हमारे लोग हैं उनको, मतलब उनमें सिंगर आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, उनको इनकरेज किया जाए। और छोटे लेवल, मतलब देहात लेवल पर, या जो वो जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे खान है, जोब है, बलूचिस्तान में है, सिंध में इलाके हैं, उन इलाकों में जाया जाए, हुकूमत के लोग जाएँ
मतलब महकमे बने हुए हैं हमारे पास, कल्चरल हेरिटेज के महकमे हैं, तो वो आए, मतलब वो उधर बैठे हैं, कोई पेशावर में बैठा है, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, और वो बार बार उन लोगों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप कभी आओ, कल्चर जो असल होता है वो तो देहात में है। देहात में आप जाकर देखें कितने रंग हैं ग्रीनरी के। तो असल कल्चर जो है वो तो ये नहीं है कि म्यूजियम में है, या आप किसी होटल में प्रोग्राम कर दें सराइकी कल्चर का या सिंधी कल्चर का, बलोची कल्चर का। असल कल्चर तो वो खड़ा है जो देहात में है। असल कल्चर और असल चीज़ें और असल लहजा और असल जबान और जो असल रंग है वो तो वहाँ पर हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस कल्चर को डेवलप करें, इनको मौका दें। अच्छा, फिर ये है कि इसमें हुकूमत की सरपरस्ती ज़रूरी है, लेकिन सरपरस्ती ऐसी ना हो कि वो आर्डर हो कि तुमने ये करना है और तुमने ये नज़म लिखनी है और तुमने ये करना है। रेडियो वालों ने एक बार मुझसे कहा कि आप ड्रामा लिख कर दें, तो मैंने कहा कि हाँ लिख कर दे दूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये टॉपिक है और इस पर लिखना है। तो भाई आपने मुझे बंद कर दिया बोतल में। तो यू हैव इम्प्रिजन माई माइंड। आपने तो मुझे, मेरे दिमाग को छोड़ा भी नहीं है कि मैं खुद से कोई चीज़ लिखूं। तो लिटरेचर को सपोर्ट करे, लेकिन इस हद तक ना करे कि वो स्टेट, हुकूमत या कोई तबका उस कल्चर पर हावी आ जाए और फिर वो उसके करता धरता बन जाए और वो जो असल रूह है कल्चर की वो खत्म हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वसदे रहो साईं, भला थी उन्हें। अगर आप कोई सवाल जवाब है तो फिर होती रहेंगी बातें। जी डॉक्टर हबीब मोहना साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार कि आपने इतनी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की और तमाम चीज़ों का अहाता किया। वो तमाम दोस्त जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको सिर्फ एक लम्हे के लिए पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम का तारफ करा दूं। आज हमारी 3 साल मुकम्मल हुए हैं पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम को कायम किए हुए। पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम ने 8 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार रिसर्च रिपोर्ट जारी की। पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम हर महीने रेगुलरली ये PPF टॉक के नाम से सेमिनार मुनक्कद करता है, और उसमें हमारे कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के उन इलाकों के दानिश्वर और उदबा शहरा को बुलाया जाए जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया मौका नहीं फराहम कर रहा। डॉक्टर हबीब मोहना साहब की कल्चर के ऊपर आपने गुफ्तगू सुनी। तमाम दोस्तों को इंटरैक्टिव सेशन की लिए दावत दी जाती है। आप अपनी वीडियो ऑन कर लें, आप अपने माइक म्यूट रखिएगा, क्योंकि जिस वक्त जो बोले वही अपना ऑन करेंगे। तो आज की जो सदारत है वो डॉक्टर नूर फातिमा चेयरपर्सन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिर पर इस बार सारे सेशन को सम अप करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूं अपने बड़े ही प्यारे शागिर्द और दानिश्वर जनाब आगा अली अब्बास साहब को। जी आगा साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और सर मोहाना साहब का बड़ा हम शुक्रगुजार हैं। बड़ा सैर हासिल सर ने गुफ्तगू की है। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आता रहे जिसकी वजह से सिग्नल जरा डिसरप्ट होते रहे, मगर हमने बड़े अच्छा इनको सुना और बड़ा मेरे ख्याल में कोई ऐसा पहलू नहीं था जो सर ने तुष्ना छोड़ा हो। अलबत्ता 3-4 अपने एड ऑन्स हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी प्लीज प्लीज। हबीब साहब की भी इजाजत से। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो एक स्ट्रेस रहा है शुरू से, वो ये रहा है कि जी कल्चर जो है वो देहात में है, या कल्चर हमारा, मैं अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म रहा हूँ पंजाब का। तो हम टूरिज्म में भी हमारी अप्रोच यही रहती है कि जी आपने जहाँ भी देखा होगा, कहीं केटू पहाड़ की तस्वीर होगी, कहीं वो चीज होगी, तो साइलोज में या आइसोलेशन में कभी भी कल्चर और उसके साथ जुड़ा हुआ लिटरेचर कभी भी डेवलप नहीं होता, कभी इवॉल्व नहीं होता। कल्चर तो जहां इंसान मिलते हैं, मसलन हम एक बहुत बड़े हिस्से को इग्नोर कर देते हैं, विच इज आवर अर्बन कल्चर। दुनिया में जितना ज्यादा अच्छा लिटरेचर लिखा गया है, जितना एक ड्यूरेबल पीस ऑफ वर्क लिखा गया है, वो ज्यादा फोकस अर्बन लिटरेचर को करता है। अगर आप शेक्सपियर की भी बात करते हैं या बरतानिया की, मिडिवल एजेस के बरतानिया की, प्रायर टू शेक्सपियर जो राइटर्स थे, चौसर था या बाकी जो उनके बड़े बड़े राइटर्स रहे, उन्हें अर्बन सेंटर्स में इवॉल्व किया। अर्बन सेंटर्स में एक कल्चरल एक्टिविटी होती थी जिसको राइटर या जो उनका लिटरेचर का नुमाइंदा होता था वो उसके अंदर यानी रिफ्लेक्ट करता था। दूसरी जो मेरी एक सबमिशन है
وہ یہ ہے کہ لٹریچر ایز سچ کوئی ایجنٹ آف سوشل چینج، یعنی کوئی اس کا پرپز تخلیق کا یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی سوسائٹی میں چینج لانی ہے، بٹ وہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یا ایک آفٹر افیکٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ لٹریچر کے ذریعے سوسائٹی میں چینج، ٹالرنس، چیزیں، کیونکہ ایک براڈ کینوس پہ وہ چیز کو لے کر آتا ہے. کوئی بھی رائٹر، ایون کوئی ہسٹورین، آپ اس کو اس کی سراؤنڈنگ سے ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی ملتان میں یا ڈی آئی خان میں پیدا ہونے والا بندہ ہے تو بامحالہ وہ اپنی کلچر کو، اپنی ایکسپیرینسز کو، اپنی باتوں کو اس میں ریفلیکٹ ضرور کرے گا اپنے پیس آف رائٹنگ میں. وہ لنڈن کی سوسائٹی کے اوپر لکھنا نہیں شروع کر دے گا، یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے موریز پہ وہ نہیں لکھے گا. اٹ از این انڈرسٹوڈ فینومینن. تو جو بات ہوئی سر سید کی، جو ہم محسوس کرتے ہیں ایز ینگ ریڈرز یا جن نے 90s میں اپنی اسکول ایج گزاری، 90s میں ارلی 2000s کو، اور ابھی کا جو بالکل ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو دنیا کتاب سے ویسے ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایوری تھنگ از گوئنگ آن ویب. آپ ویب سائٹ پہ زیادہ، یوٹیوب کے ویورشپ جو ہے وہ ملینز میں ہوتی ہے، کلپس کی بھی، ایون ٹاک شوز کی بھی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ماڈرن ایج کا لٹریچر بن چکا ہے. تو ایک چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یا جو نیو کلونیل لٹریچر تھا، جو پوسٹ 47 جو ہمارا پاکستان میں لکھا گیا، رائٹ کی طرف سے بھی، لیفٹ کی طرف سے بھی، یا جو بھی، it has not been successful to generate a social debate. بیسیکلی لٹریچر کیا کرتا ہے کہ لٹریچر کا مقصد سوشل چینج نہیں ہوتا، بٹ لٹریچر ایک سوشل ڈیبیٹ ضرور جنریٹ کرتا ہے. کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ڈارون نے، ایون سائنس از دی ایجنٹ ٹو جنریٹ اے سوشل ڈیبیٹ، کہ ڈارون نے اگر 19ویں صدی میں نظریہ ارتقاء دیا تو 20ویں صدی پہ ایک وہ نظریہ ارتقاء کی چھاپ ہمیں نظر آتی ہے، تمام ریولوشنز نظر آتے ہیں، بیکاز دے گیو اوے دی آئیڈیا آف کنگ اور ڈائنیسٹیز بینگ فرام دی ڈیوائن اوریجن. تو اس چیز نے ایک بہت بڑے پرپز کو سمجھے آگے پروپیل کیا، اس کو آگے پروپوگیٹ کرنے میں اس کی حمایت کی. تو پاکستان میں ایک جو سوشل ڈیبیٹ کا جو کلچر ہے، literature generates a social debate. Social debate is the agent of cultural or social change. تو وہ ڈیبیٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں جاتی کہ جہاں سے ایک چیز 80s میں جو پاکستان میں لٹریچر آیا، میں ان کتابوں کا یا ان ہستیوں کا نام نہیں لوں گا کہ کیونکہ ظاہر لوگوں کی بہت زیادہ ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ہم نے انفارچونیٹلی لٹریچر کو بھی ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کے لیول پہ ہم اس کو لے گئے ہیں کہ اگر فیض ہے تو فیض کے اگینسٹ بولنا، اقبال کے اگینسٹ تو ویسے ہی اقبال پہ کوئی نارملی بھی اگر کوئی بندہ تنقید کرے تو وہ یعنی کفر میں توہین اقبال میں آئے گا. ہاں جی، وہ توہین اقبال میں آ جاتا ہے، اور اس طرح توہین فیض میں بھی آ جاتا ہے. تو 80s میں جو لٹریچر لکھا گیا اور ڈیلیبریٹلی یعنی ایک اسٹیٹ پیٹرنیج کے ساتھ لکھا گیا، جس پہ آپ یعنی جو پوسٹ کولونیل لٹریچر تھا، اداس نسلیں ہو گئی، اس کو، یا آگ کا دریا ہو گیا، اس کو ایک ٹیبو کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا، منٹو کو ایک ٹیبو کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا. اور پھر جو چیزیں تھیں کہ وہ جو صوفیزم پہ جو چیزیں یا ایک مونولوگز جنریٹ کیے گئے، they were not able to generate a dialogue, they were all monologues. تو مونولوگ بے شک بہت اچھا پیس آف لٹریچر بھی ہوگا، مونولوگ کبھی بھی اگر وہ اپنے قاری کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا اور سوشل ڈائیورسٹیز کو ایڈریس نہیں کرے گا. پاکستان میں تھوڑا مختصر کیجئے گا تاکہ باقی لوگوں کی ڈیبیٹ بھی ہو جائے. سر میں بس دو جملوں پہ اس کا اختتام کروں گا کہ پاکستان میں جو ایک کلچرل پلورلزم ہے، جو ایک ڈائیورسٹی ہماری رہی ہے، جو کچھ انہیرنٹ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری ہسٹری بھی شروع ہوتی ہے تو محمد بن قاسم سے ہم شروع کرتے ہیں، اس سے پچھلی کو تو ہم جو ہے وہ ختم کر دیتے، ڈسون کر دیتے، پھر ہم ہڑپا پہ پہنچ جاتے ہیں 2000 کے گیپ کے ساتھ، 2000 سال کے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی مضبوط قومیں ہیں
وہ اپنے مثلا اگر برطانیہ کی بار بار مثال دی گئی جو کہ بڑی اچھی ایک ظاہر ہے اسٹینڈرڈ آف دا ورلڈ ہے، تو انہوں نے اینگلز کو بھی ایکسیپٹ کیا، لیٹن انفلوئنس تھا، سیکسنز تھے، وائکنگز تھے، اس کے بعد جو ان کا کانٹریکٹ تھنکرز رہے، جو بھی ان کا ایک ارتقاء ہوا ہے، اس ارتقاء میں انہوں نے ایک بڑی اچھی فلسفی تھی کہ جو چیز یوزفل تھی، جیل along کرتی تھی ود دیئر روٹس، اس کو ریٹین کیا، باقی کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. تو ہم بھی جب تک وہ کلچرل اسیمیلیشن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ پھر یہی ہوگا کہ یعنی وی ول کیپ ورکنگ ان سائلوز. یہ الگ الگ ہی چیز ہوگی جو کہ وہ امپیکٹ جنریٹ نہیں کر سکے گی جس کے ہم سارے جو ہیں متمنی ہیں اور خواہاں ہیں. جی بہت شکریہ. Thank you, کوئی آپ کا سوال تو نہیں ہے حبیب مولانا صاحب سے؟ نہیں سر، سوال نہیں تھا، اسی کی کوئی تھوڑی سی تائید تھی اور تھوڑا سا ایڈیشن. جی جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور کوئی دوست جو اب بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں پلیز. مجھے بہت اچھا لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ ایکسکیوز می، ڈاکٹر صاحبہ ویڈیو آن کیجئے گا. ڈاکٹر راشدہ قاضی، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اردو غازی یونیورسٹی، ہماری پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پروفیسر وومن ونگ کی. جی ڈاکٹر صاحبہ. بخاری صاحب وہ ویڈیو نہیں پئی آن تھیندی. میں کرے نا تھوڑی ویڈیو آن سر، تسا تھوڑا صبر کرے سو. تسا ویڈیو تے کلک کرو، آن تھی ویسی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی بخاری صاحب ہو نہیں رہی آپ کی طرف سے لگتا ہے. جی میں کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب بولیں. ہاں جی، میں بہت شکر گزار ہوں موہانا صاحب کی، انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ موہانا کاسٹ ہے کیا جو ہم سرائکی میں ملاح کو کہتے ہیں، یہ وہی ہے یا اس کا کوئی اور سلسلہ بنتا ہے؟ دوسری بات، ابھی آغا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ علامہ اقبال کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، فیض کے خلاف نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ تو ظلم ہو گیا کہ ان کی اچھی شاعری اقبال صاحب کی چھپا دی گئی. میں اقبال کے 2 شعر میرے ذہن میں ایسے آ رہے ہیں جس سے ہم ایک نئے اقبال کو ڈسکور کر سکتے ہیں کہ ہم موت مانگتے ہیں وہ گھبرائے جاتے ہیں، ہم موت مانگتے ہیں وہ گھبرائے جاتے ہیں، سمجھے کسی نے اور ہی مانی وصال کے، اور بگڑے ہوا نہ شوخیے رفتار سے کہیں، بگڑے ہوا نہ شوخیے رفتار سے کہیں، چلتے نہیں وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زبردست. وہ جو دوسرے ناقدین ہیں نا جی اس قسم کے اشعار کے، وہ کہتے ہیں یہ علامہ صاحب کے ایام طفولیت کے تھے، بعد میں وہ رجوع کر گئے تھے ان ساری باتیں. وہ اقبال کے اس حصے کو ہی جو ہے نا ڈسون کر دیتے ہیں. بہرحال جی ہم اسی عہد سے ہی اقبال مند ہو پائے ہیں. نہیں چاہتا تھا تو دوجے والا چاہتا مولانا اقبال. اچھا گئی گال نہیں آگے جانتے سی گفتگو on a lighter note ایک جی بات. جی 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 اینی ادر پلیز. ذکاء اللہ صاحب کی ویڈیو آن نہ کی تو میں بہت زیادہ پریشانی میں چلا جاؤں گا. ذکاء صاحب ہمارے جی سر ذکاء صاحب آن ہوئے ہیں آپ؟ ذکاء اللہ صاحب جی سر آپ کا کوئی سوال کوئی کمنٹ؟ نہیں، شکریہ ویڈیو آن کرنے کا بھی. اور سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارے گرائی حبیب مولانا صاحب کی آپ نے بڑی پرمغز گفتگو سنی، اور مجھے تو بڑی خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ پہلی بار ان کو سن رہا ہوں، اور ایک شہر کے ہوتے ہوئے بھی ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. میں بھی شہر سے دور رہتا ہوں، بلکہ اسٹوڈنٹ لائف سے نکلوں تو پھر واپسی نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کلچر کے حوالے سے، دوسرے دوستوں نے، واغا صاحب نے بھی بات کی، سب نے اپنے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اور لیکن میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ مباحث میں پڑھنے کی بجائے، کیونکہ ہم یہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم لوگ مباحث میں پڑھ جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ روز کا جو سچ ہے اس سے آج کا سچ مقدم ہے. اس لیے ہمیں آج ہی کے سچ کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ادب بنیادی طور پر تو زندگی کی ترجمانی بھی کرتا ہے اور اس کا احاطہ بھی کرتا ہے. تو کلچر کے حوالے سے، کلچر کوئی بھی ہو، جس طرح انہوں نے صحیح کہا کہ ہم جب ملتے ہیں تو یہ بھی ایک کلچر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو ہمارے رنگ ہیں
یہ ایک ڈائلیما ہے کہ ہمیں یہ مجبور کر دیا گیا کہ ان کو ایک خاص نقطۂ نگاہ سے ایک خاص زاویے سے پیش کرنا ہے، یہاں سے پھر وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی لاہور کی 80s میں، بیفور 80s یعنی مڈ 70s میں، تو وہ جو کلچر تھا وہ اب لاہور میں نہیں ہے۔ تو وہ جس کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں وہ جو مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں اپنے کلچر کو نمایاں، تو وہ سب تمام کلچر نمایاں تھے، لیکن جب ہم انہیں کسی ادارے کے انڈر لے آئے تو پھر وہ ان پہ پابندیاں بھی لگنے لگیں، پھر انہیں ایک مخصوص زاویے سے بھی پیش کیا جانے لگا۔ تو یہیں پہ پھر وہ چیزیں ہمارے اس نسل کو آگے آنے نہیں دے رہی ہیں، اس کے پاس وہ نہیں پہنچ رہی۔ مثلا میں ڈیرے کی مثال، مولانا صاحب چونکہ وہاں سے ڈیرہ بول اسماعیل رہے ہیں، خان سر، ڈیرہ ڈیرہ اسماعیل اسماعیل خان، خان، جی جی، وہ بڑا دیرہ، وڈا دیرہ جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی جی تو وہ اس ڈیرہ اسماعیل خان میں 97 میں انہوں نے وہاں دامان آرٹ کونسل کی بنیاد رکھی۔ تو وہاں پھر ان دنوں میری پوسٹنگ میں پنجاب سے آ گیا تھا، تو ہمارے پروفیسر ارش صاحب بھی تھے، وہ عبرانی صاحب، تو مجھے بھی بلایا۔ تو وہاں پہ پھر انہوں نے سرکاری سرپرستی میں یہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت پھر میں نے یہ کہا کہ اگر اس کا سرپرست کمشنر کو نہیں ہونا چاہیے، اس کا الیکشن ہو اور یہ بااختیار یہاں کے لوکلز ہوں، ورنہ اگر یہ اب تو اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں کمشنر، اگر یہ کل کو ایک دوسرا آ جائے جو وہ بے ذوق ہوگا تو اس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس وقت میری بات کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہی ہوا کہ اس کے جانے کے بعد آج دامان آرٹ کونسل کے نام اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح میں پچھلے دنوں وہ 2-3 فیسٹیولز میں گیا، تو وہاں انہوں نے، پہلے ہم الحمرہ میں جاتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا اور ہمارا آرٹ کونسل سے گزرے تھے، نہ کوئی پاسز نہ کوئی ٹکٹس، وہاں گئے اور وہاں جو ملکہ پکھراج تھی وہ اپنے کلاسیکل ہمیں سنا رہی تھی، تو وہیں بیٹھ کر ہر ایک بات بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹرز بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا، پھر ان کو ایک ڈکٹیشن دے دی گئی کہ آپ نے اپنے کلچر کو یوں پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہونا چاہیے، لیکن سرکاری سرپرستی اس حد تک ہونی چاہیے کہ فنڈ کی پروویژن ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ جو بااختیار ہے وہ وہاں کے لوگ ہوں، وہاں کے مقامی ہوں، تب جا کر وہ آگے بات جا سکتی ہے۔ باقی کلچر ہمارا بڑا ریچ ہے اور اس کو آگے جانا چاہیے، اور میں ہمیشہ اس کے حق میں رہتا ہوں۔ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، سب دوستوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، مولانا صاحب نے بڑی اچھی جن چیزوں کو انہوں نے نمایاں کیا، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا تدارک بھی کیا جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، اور اس طرح۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اشبر جدون صاحبہ، اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کمنٹ کرنا چاہیں۔ اشبر جدون صاحبہ KPK میں ہماری PPF کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جی اشبر جدون صاحبہ، میم اشبر جدون، آپ اپنا مائک آن کیجئے گا پلیز، اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ مائک پہلے اوپن کریں۔ وہ سر درمیان میں وہ بات رہ گئی ہے، موہانا کاسٹ ہے یا کچھ بھی کہہ رہا ہوں۔ جی 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 میم راشدہ قاضی نے غالباً ایک کوشچن کیا تھا، تو جی تھوڑی یہ جی وضاحت جی بھی ہو جائے۔ یہ جی جنگ سے تعلق تو نہیں ہے، سیال اور موہانے شاید کیا ادھر سے ہی ہو نا۔ بابا بلے شاہ کے ایک شعر میں بھی ذکر ہوتا ہے وانج موہانے، تو تو یہ وانج موہانے۔ آپ اپنی ویڈیو آن کیجئے گا۔ نہیں سر میں ابھی نہیں آن کر سکتا، ان اچھا سچویشن چلیں، نہیں ہوں، تو کائنڈلی اگر جی 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 بولیں 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 بولیں۔ جی سر کو بولنے دیں، اگر مولانا صاحب خود اس کی ایکسپلینیشن کر دیں، کیونکہ ادھر جنگ سے لگے ہوئے کافی لوگ ادھر ہیں جی ڈیرے مولانا میں۔ صاحب، یہ جنگوی صاحب ہیں، نجم الحسن صاحب، ان کو جواب دیجئے گا۔ اچھا، یہ جو موہانا ہے نا، سریکی میں موہانا، یہ کاسٹ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دریا میں کشتی چلاتے ہیں، وی آر بوٹ مین، اور عربی میں پھر اس کو ملا کہتے ہیں، یہ لفظ چلتا ہے۔ پھر اس کو سندھ میں میر بحر کہتے ہیں، جو کہ اصل میں امیر بحر ہے، امیر البحر، وہ بھی عربی سے آیا، تو یہ بھی موہانے کو کہتے ہیں۔ سندھی میں اس کو موہانو کہتے ہیں، موہانو۔ تو یہ 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ موہانا قوم جو ہے یہ چاروں صوبوں میں ہے، سرحد میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور ابھی پاکستان میں ان کی ایک پاکستان موہانا فاؤنڈیشن ہے، جو کہ ہم اکثر ملتے رہتے ہیں۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ کل ہماری کوٹدو میں میٹنگ ہے کی زبان کی
اگر جناب عابد حسین ہاں، صاحب سرائکی آپ زبان میں سب سے جی۔ زیادہ جو ذکر ہے جس قوم کا وہ موہانا ہے. اچھا ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہے. عابد حسین صاحب جی پلیز ایک منٹ. مشتاق صاحب یہ بخاری صاحب ایک منٹ مجھے. جی بخاری صاحب یہ میری ریکویسٹ پہ ہمارے یو کے سے لندن سے ایلڈر مین ہے مشتاق جی میں ان کو جی مشتاق صاحب پلیز. ہاں وہ شریک ہے. دیکھیں جی یہ جو ابھی آپ نے شعر پڑھا ہے میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ سارے لوگ اس کو سمجھ لیں. دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے وچے ڈیرے وچے چھیڑے وچے ونج موانے. اب کسی کو کہیں اس کی تفصیل بتا دیں اور اگر کوئی نہ بتا سکے تو پھر میں بتا دیتا ہوں. جی آپ جاری رکھیں. جی سر بہت خوبصورت. جی حضور یہ بہت گہری بات ہے. انہوں نے اس کو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو جھنگ کے لوگ ہیں جو جانگلی جس کو کہا جاتا ہے یہ نیلی بار جو منڈی بہاؤالدین سے شروع ہو کے ساہیوال تک جاتی ہے اور ہماری مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اس میں شریک ہو رہا ہوں. آلدو میں بیچ میں بریک کرتا رہا چونکہ میری ایک دوسری میٹنگ بھی جاری ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پی پی ایف والے یہ ہر مہینہ کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام ان میں جاؤں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں چونکہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے بات کی. تو یہ ایک ڈھولا ہے. ایک یہ شعر جو میں نے ابھی پڑھا یہ ہے. اب دیکھیں ایک ڈھولا ہے جو میرے والد صاحب کا ہے, گل شیر خان جھنگ سے ہیں اور بہت سارے شاعر ہیں. مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ جب میں انگلینڈ آنے لگا تو انہوں نے ایک ڈھولا کہا کہ یار ہمارے دیہاتوں کے لوگ جب پڑھ جاتے ہیں تو وہ پردیسی ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کسی اور میرے بھائی کو پڑھنے نہیں دیا اس لیے کہ پردیسی نہ ہو جائے. اور میرا خیال ہے پردیس کی اگلی دفعہ ذرا آپ تعریف کر دیجئے گا. آج تو پردیس رہا نہیں دنیا میں, ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں اور پھر بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. لیکن انہوں نے ڈھولا کہا تھا کہ ون ون ونوٹیا تیریاں چارے ٹانیاں. ون ون ونوٹیا تیریاں چارے ٹانیاں بھلی واہ وچھوڑے دی آپو آپ ڈلانیاں. یہ اسی زبان میں ہے جس میں یہ ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلاں دیاں جانے وچے ڈیرے وچے چھیڑے وچے ونج موانے. وہ کشتی کی ایک تعریف کی گئی ہے جس میں انہوں نے سب کو مکس کر دیا کہ دل اور پھر دریا اور سمندر اور پھر اس کو لنک کیا ہے انہوں نے. بہت شکریہ آپ سب دوستوں. مشتاق صاحب ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارا پیپلز فورم بھی جوائن کریں. مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجیے گا افضال بھائی کے ذریعے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ممبر بھی بناؤں گا اور آپ ہمیں ریگولر جوائن کیجیے. جی عابد حسین صاحب آپ تعارف بھی کروائیں اور ہمیں جوائن بھی کریں. انقلابی صاحب کے پاس میری ساری ڈیٹیل ہیں, آپ ان سے. جی میں تابعدار. جی عابد بھائی. عابد حسین صاحب. جی سر آپ کا بہت شکریہ. میں لنک بھیج دیا تھا تو میں جی آپ کی آواز واضح آ رہی ہے. میری آ رہی ہے اگر آپ کمنٹ جی آ رہی ہے آپ بولیں. آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا حبیب صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر آپ کا شکریہ. حبیب صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے لنک بھیج دیا تھا. حبیب کا ہمارا تعلق بہت ہی پرانا ہے تو حبیب کی ذرا نوازی ہے کہ حبیب کا جو انگریزی کا کام ہے اس میں ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں. ہی از اے ویری ورسٹائل پرسنالٹی, ویری پرولیفک رائٹر. اور جو ہمارا اپنا وسیب ہے دامان ڈی خان ٹانگ کے علاقے کا, تو اس پہ ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ اپنے طور پہ سرائکی اردو اور انگریزی میں اس کو پورٹرے کرتے ہیں اور میں اپنے طور پہ کرتا ہوں. اپنی دھرتی سے منسلک ہیں. اور حبیب نے جو ریسنٹلی ابھی کلچر پہ ابھی بات کی ہے تو اس سے بڑا ہی دل خوش ہوا. اور میں چاہوں گا کہ ان کا جو فکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر سے ریلیٹڈ میں کہتا ہوں کہ سرائکی اردو اور انگلش سب میں
ये एसेज आने चाहिए ताकि एक वाइडर अवेयरनेस हो। और जैसे हबीब ने कहा है, मुहाना तो ऐसी कौम है कि ये जितने भी हमारे दरिया हैं उनसे वाबस्ता है। वाह वाह, क्या कहना। और इनके दिल जो है वो भी दरिया ही की तरह है, वसी है। और इनकी अपनी हबीब की जो तबीयत है वो जैसे दरिया दिल है, तबीयत भी वैसी है। और मुनकसिरुल मिजाज और बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे राइटर। तो मुझे शर्फ ये हासिल है कि मैं फख्र से कहता हूँ कि इनके अंग्रेजी की जितनी भी चीजें होती हैं ये पहले मुझे दिखाते हैं फिर किसी और को दिखाते हैं, क्योंकि मेरा मजमून जो है वो अंग्रेजी अदब है। माशाल्लाह। तो फेसबुक पे हबीब साहब आपको आईडी दे देंगे, जी, तो जी। वहां पे आप मेरे नॉन फिक्शन पे मैं लिखता हूँ। अच्छा। तो नॉन फिक्शनल एसेज जो हैं वो मेरे उधर ही होते हैं। और जिस तरह से मेरी आदत है और हम अपने तलबा को भी कहते हैं कि जी आप जब चलते हैं या बाहर जाते हैं तो आपकी निगाह हर तरफ होनी चाहिए। आप सामने भी देख रहे हो, आपको दाएं हाथ का भी पता हो, बाएं हाथ का भी पता हो, पीछे का भी पता हो, ऊपर का भी पता हो और नीचे का भी पता हो। और होता क्या है कि हमने इसी तरह से सीखा है कि ऊपर आसमानों में क्या हो रहा है, नीचे जमीन पे कौन सी मखलूक चल रही है, आगे कौन लोग हैं, पीछे कौन लोग थे। क्या कहना। और यही चीज जो है हबीब में भी है, मुझ में भी पाई जाती है, एक दूसरे की सोबत में भी हमने सीखा है। और he is a down to earth fellow, a very humble man, a very sincere person, and the way he portrays life around him on the Amman and the life which is related to the river and the riverine people, so very few people can do it. Or Sir Abid, we really feel proud to have Habib Muhanna with us today, and he has really presented an excellent presentation on culture and literature, particularly when he talks about soft power of Pakistan, its role in economy. तो ये उनकी एक बड़ी गहरी नजर थी कल्चर के ऊपर, और सॉफ्ट पावर इज नेवर टॉक्ड अबाउट इन पाकिस्तान, इस पे लोग बात नहीं करते। इस वक्त एशिया में सॉफ्ट पावर के ऊपर अगर कहीं सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है और मकाले लिखे जा रहे हैं और रिसर्च की जा रही है तो वो चाइना में हो रही है। चाइना इज यूजिंग सॉफ्ट पावर एज इट्स टूल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द वर्ल्ड एज अ कंट्री के वो अपने आप को बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान नीड्स डेस्परेटली नीड्स टू वर्क ऑन इट, क्योंकि जो मौना साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि हमारे बाजार, हमारे मज़ार, हमारे कल्चर के जो मुख्तलिफ अज़ार हैं, ज़रिए हैं, वो हमारी सॉफ्ट पावर हैं। पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर एंड फेस्टिवल्स इन द विलेजेस। ये हमें इनको बहुत प्रमोट करना होगा, क्योंकि आई कैन शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट टू चाइना इन 2015। तो वहाँ पे मेरे बच्चे को, जो वो नीचे गया एक शॉप पर, तो उस शॉप के एक लड़के ने कहा कि यू बिलोंग टू पाकिस्तान एंड देयर इज डुस 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 डुस। तो मेरा बच्चा 4 साल का था, वो वापस आया और उसने मुझे आके कहा कि बाबा ही कॉल्ड मी टेररिस्ट। तो मैं फिर उसके पास गया और मैंने उसको जाके समझाया कि भाई हम टेररिस्ट नहीं है, एंड दे बिकेम माय फ्रेंड। और ये चीज हमें बहुत ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान सारा ना तो टेररिस्ट है, ना सारा पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट या रेट्रोग्रेसिव है। पाकिस्तान में सॉफ्ट पावर को लिटरेचर में भी, कल्चर में भी और प्राइवेटली और ऑफिशियली प्रमोट करने की जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम में मजीद कोई दो सवाल पूछना चाहते हैं, या मैं दावत दूं जनाब नूर फातिमा साहिबा को कि वो सम अप करें आज की डिस्कशन को। एनी अदर फ्रेंड? यस, किसी का हाथ ऊपर हुआ है तो वो साहब अपनी बात का आगाज करें और अपनी वीडियो ऑन करें। जी प्लीज। जी बुखारी साहब। जी 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 अफजाल साहब। जी बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको, राशिदा काजी और जितने भी पीपीएफ की मैनेजमेंट है, उनको आज बहुत मुबारकबाद
देना चाहूँगा कि आज जी। का जो प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम की ये खसूसियत थी कि हमारी जो पार्टिसिपेशन थी वो 24 तक रही है। जी वो बहुत ज्यादा है, और फेसबुक पर ना 11 शेयर हुए हैं और तकरीबन 100-150 बंदा लाइव था मेरी फेसबुक पर। जी वो अलग। अच्छा, ये एक हमारा बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और आज हमारे सब अच्छे जेन्युइन दोस्त आए हैं, ज़काउल्लाह साहब भी आज स्पेशल तशरीफ लाए हैं। और जहाँ तक हबीब मोहाना साहब की है, हबीब वो भाई आपने, एक्सक्यूज मी सर, हबीब भाई वीडियो ऑन कीजिएगा, आप महफिल के दूल्हा हैं और आप गायब हो जाते हैं। अच्छा, मेरा वो कनेक्शन थोड़ा कमजोर था, वो आता जाता रहा है। नहीं, अच्छा नहीं, ये मौजूद रहे महफिल में, हमारे दिल में है, कोई ऐसी बात नहीं। ये टेक्निकल अभी कुछ हमारी मजबूरियां हैं हमारे मुल्क में, तो ये चलता रहता है। तो हबीब मोहाना साहब खासतौर पर मुझे बहुत खुशी हुई जब ये पता लगा कि ये जेन्युइन सराकी बेल्ट के और सराकी पर्सनैलिटी हैं। तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जेन्युइन लिटरेचर है, जेन्युइन सोच और फिक्र है, जो वतन परस्ती है, ज़मीन से मोहब्बत है, वो सराकी और सिंधी ही ज़्यादा उसमें रोल है। तो जिनमें सराकी को पहले पंजाबी के नीचे जो ना नज़रअंदाज किया जाता था, अब सराकी खुद अपनी आइडेंटिटी के तहत सामने आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा शगन है, और ये मुल्क के लिए भी, इस माशरे के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा आइंदा के लिए। इस मुल्क में जब भी इस्तेसाल नाइंसाफी की बात होगी तो ये लोग जो है ना, ये जेन्युइन जो सन ऑफ सॉइल जो है, तो वो उसमें मुज़ाहमत जो है इंशाल्लाह करेंगे और उससे बेहतर माशरा कायम होगा। और जहाँ तक ये लिटरेचर और कल्चर की बात है, मैं समझता हूँ कि लिटरेचर और कल्चर के बगैर तो कोई समाज ही नहीं तामीर हो सकता। खासतौर पे इंसानों का समाज, ऐसे इंसान जो कोई फिक्र और शऊर रखते हो, वो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई उल्लू का पठा कोई आ जाए कि मुझे ये भगवान ने अख्तियार दिया है कि बस आप लेट जाओ मेरे नीचे। तो ये चीजें, जो इन चीजों को, जैसे हबीब मोहाना साहब ने बहुत एक मुख्तसर से वक्त में पूरी वर्ल्ड व्यू सारा उन्होंने पेश किया, और यूरोप का हवाला भी दिया, डार्क बहुत उम्दा बहुत उम्दा था। तो ये मैं इनको बहुत ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, रेड सलूट पेश करता हूँ, और इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक इनका एक बात आई कि मीडिया के ऊपर, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर राइटर्स के लिए कोई खास वक्त मुतय्यन किया जाए। देखिए बात पता कि हम ये पीटीएफ का जो नेचर है, जिस तरह से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग अगर इन चीजों में पीछे पड़े रहे तो बहुत वक्त ज़ाया होगा। हम जो ना, हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हाँ, जिस तरह से ये फोरम है, मैं चाहूंगा कि सब दोस्त आस्था इसमें मजीद संजीदगी से ले। हम पैनी इकट्ठी करके हम इसी को ही, जैसे सॉफ्ट टॉक है या हमारे फोरम, तो इसी को हम ऐसा एक चैनल बना दे कि जहाँ पे कम रोजाना 3-4 घंटे के लिए हमारा जो स्कॉलर जो ना वो लिटरेरी पर्सन बिल्कुल और अपने और अपने ख्यालात और अपनी तख्लीकात और अपना फिक्र पेश करें, और उसमें लोगों का भी इनपुट आता है। ये प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिएगा। जो मैं जनाब अफजाल इनकलाबी साहब की इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये फोरम पाकिस्तान के तमाम दानिश्वरों के लिए ओपन है, और हम प्लीज आप अपनी बात बंद कीजिएगा, जो कोई साहब भी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस फोरम को टीवी रेडियो के हम मुताज नहीं है। हमारा अपना ये फोरम इतना वाइब्रेंट है, हमारा पूरा सोशल पेज है, फेसबुक पर है, हमारा जो है पूरा यूट्यूब चैनल है। तो ये रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब चैनल पर भी चली जाएगी और उस पर भी चली जाएगी। अब हम इस बात, आज की महफिल का इख्तिताम करने से पहले महफिल की सदर जो सदारत थी वो जनाब डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, चेयरपर्सन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरमा रही थी। हमारी पीपल्स प्रोफेसर फोरम की सीनियर एडवाइजर और फेलो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की इस हबीब मोहाना साहब की डिस्कशन को सम अप करें और इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच
आवाज आ रही है ना आपका मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही। थैंक यू सो मच नासिर साहब, डॉक्टर नासिर, कि आपने सडन इंस्टेंट मुझे ये जिम्मेदारी दे दी, बट आई वाज रियली हैप्पी कि डॉक्टर अभी साहब मैं सोच रही हमारे थी बहुत जी डॉक्टर साहब हाँ हमारे पास जो ज्यूल्स और हीरे हैं उन्हें वक्त देने की जरूरत नहीं होती, वो सारे अपने थैंक यू काम में ना माशाल्लाह। थैंक यू नहीं नहीं मैंने बहुत बहुत मुझे जी आपका बड़ी ये जी प्लीज। इसको रिकग्नाइज करना चाहिए, बिकॉज देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें फेस्टिविटी शामिल होती है उसमें तो लोग आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के फोरम जहाँ पे सीरियस एक डिस्कशन है, कोई भी सवाल उठाया जाए, डिबेट की जाए, डिस्कोर्सेज की जाए, उसमें आपको बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बहुत सारे फोरम्स को अटेंड करती रही हूँ जहाँ आपको 3-4 लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं कंसर्न सिटीजन, जी 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 वो बड़े कम लोग होते हैं। लेकिन आपके इस फोरम के ऊपर भी आपने जैसे बताया बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और दैट शोज कि अभी भी लोग कंसर्न हैं, और दैट शोज, और लेकिन आपने जो एक लीडिंग रोल लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने लोगों को इकट्ठा किया और आप उनको घर में बैठ के भी आप उन्हें कहते हैं कि आप आइए, और वो आ रहे हैं। तो दैट इज रियली जिसे कहते हैं इनक्रेडिबल। इसके अलावा जो हाँ मैंने जो डिस्कशन सुनी, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो डिस्कशन की है एज अ होल, उन्होंने बहुत कुछ इसमें समाप्त किया है, नॉट ओनली द कल्चर। अब देखिए उन्होंने जो डेवलपमेंट है हमारी कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, यूके की जो उन्होंने बच्चों की उसकी लेबर की भी बात की, लेबर लॉज की, और उसके जी बाद जो उन्होंने होल उसकी डेवलप, जाहिर है कि कल्चर देखिए अगर जब कैपिटलिज्म आया उससे पहले कल्चर जो है वो कुछ और था, कैपिटलिज्म के बाद कल्चर डेवलप हुआ, लेकिन जब हम फिर वो अपने कल्चर पर भी आए। एक चीज है छोटी सी कि इस जमाने में जब हम देखते हैं ना, जो हमारे पिछले साथी ने भी बात की है, उसमें ये है कि कल्चर जो है ना वो मार्केटेबल होता है तो वो रेलेवेंट रहता है उसकी, और यही रीजन है कि हमने अब इसको एक और टर्मिनोलॉजी में यूज कर लिया, और उसमें हमने कहा सॉफ्ट पावर। जोसेफ नाइक की बात को उन्होंने रेफर किया। अच्छा, आपने भी कहा कि सॉफ्ट पावर की डिस्कशन कम है, बिल्कुल कम है, और इसमें मेरा भी एक पेपर है सॉफ्ट पावर के ऊपर के। आपने टेररिज्म की बात अपने बेटे के रेफरेंस से की, मैंने उसमें टेररिज्म के रेफरेंस से की कि हम सॉफ्ट पावर को यूज करते हुए, हार्ड पावर तो हम कर ही रहे हैं लेकिन उससे भी टेररिज्म उस तरह से डील नहीं हो सकी, लेकिन अगर हम सॉफ्ट पावर को करें और एक नैरेटिव बिल्ड करें पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के उस सॉफ्ट पावर को सेलेबल बना के इंटरनेशनल मार्केट में करें, तो उसमें पाकिस्तान का जाहिर है कि एक सिक्योरिटी वाइज और अदरवाइज टेररिज्म की और एक्सट्रीमिज्म की सारी चीजों को भी हम डील कर सकते हैं। इन्होंने वो बात की, छोटी सी बात मेरे माइंड में से आ रही थी कल्चर के हवाले से, और रेलेवेंस और कल्चर और इकोनॉमी पे जो हम आप करते हैं, क्योंकि मेरा फील्ड जो है आप जानते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी है। कभी कल्चर होता था, आप देखिए कि पानी लेने के लिए खवातीन जो हैं दूर दराज इलाकों में अब भी जाती होंगी, लेकिन चूंकि हम यहाँ कैपिटल में बैठे होते उतना हमें नजर नहीं आता, तो वो सर पे वो एक वो होता है जो सर पे लेते हैं ना, पानी भर के जाते हैं, तो जी 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 वो घड़ा। उसको कुछ कहते हैं जी, घड़ा। तो वो जो लेके जाते हैं, अच्छा मैं सोचती हूँ क्या जिन घरों में ये होता होगा वहां अगर आप एक वाटर पंप लगा दें, नलका लगा दें, तो सडन क्या होगा कि वो कल्चर जो आपको देखने में नजर आ रहा है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या एक इंस्ट्रूमेंट से चीजों से वो चेंज हो जाएगा। तो नेचुरली कल्चर अपने वक्त में अपने साथ, आजकल देखें तो आजकल हम ज़रा टेक्नोलॉजी के भी अपना एक कल्चर है, तो कल्चर का मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कल्चर और डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए। जो इन्होंने बात की थी कि डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में वो आपको टाइम दें, तो मैं आपको बताऊं कि शायद इस तरह से टाइम कोई भी नहीं देगा, क्योंकि दिस इज अ मार्केट इकोनॉमी वर्ल्ड। सो इसको जब तक, जिस तरह के आपके फोरम है या बाकी फोरम्स पे बहुत हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद होते हैं बात करने के लिए, इसको जब तक इस पूरी डिस्कशन को, सवाल को हम उठा के एक इस लेवल पे प्रोमिनेंस में ना ले आए, स्ट्रीमलाइन ना करते हैं जहां ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, उस वक्त तक आपको जो स्टेट टीवी चैनल्स है ना वो उस तरह से, मैं ये नहीं कहती ओकेजनली तो मिल सकता है नेचुरली हर टीवी पे, लेकिन शायद ना मिल सके। बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने जो है वो बहुत मेन स्ट्रीम उसमें फोरम्स पे नहीं भी बैठ के, लेकिन वहाँ बैठ के भी उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की कॉम्प्रिहेंशन की है। आई आल्सो लर्न अ लॉट अबाउट पर्टिकुलरली कल्चर, और बाकी जो साथियों ने भी बात की है कल्चर की।
اور کلچر کبھی بھی ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا ہمارے جو تعلیم اس سے باہر نہیں جا سکتا. ہم سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کلیش آف سویلائزیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہنٹنگٹن نے کیا بات کی تھی, اس میں کلچر کو آپ نکال نہیں سکتے جو بات اس نے کی. دو وی ڈونٹ اگری ود اٹ بٹ اسٹل اس نے کلچر کی بیس پہ ہی سویلائزیشن کو ڈیفائن کر کے آپ کو جو ہے وہ کلیش ڈالا اور اس کو کلیش میں ڈسکس کیا. So having said that, thank you so much. I'm really grateful to you and سارے ساتھیوں کا اور پریزنٹر کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بہت ہی آسان الفاظ میں بہت کیپٹلز ڈیولپمنٹ سے لے کر جوزف نائی تک بہت اچھے طریقے سے اس کو کمپریہینڈ کیا. تھینک یو سو مچ. آج کی اس سیمینار میں ڈاکٹر حبیب موانا صاحب نے رول آف فکشن رائٹر انوینشن سے لے کر سر سید احمد خان کا بھی حوالہ دیا کہ کس طرح وہ کلچر چینج کرنا چاہتے تھے اور اس وقت کا ملا ان کے راستے کی رکاوٹ تھا. تو ایک دفعہ پھر آج پاکستان میں وہی صورتحال ہے کہ پاکستان کے کلچر کے سامنے جو سب سے بڑی دیوار ہے, جو پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ ریلیجیس ریجیڈیٹی ہے. اور اس کے لیے حبیب موانا صاحب جیسے سر سید احمد خان پھر سامنے آنے اور لانے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سافٹ پاور کے بغیر پاکستان کا جو امیج ہے وہ پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. ابھی موانا صاحب کی نظر میں جوید اختر کے 3 اشعار کر رہا ہوں. جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ, جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ, اتنی اندھیری نہ تھی کبھی پہلے رات لکھ, جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ, جو روز ناموں میں پاتی نہیں کہیں جگہ, جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ, جو واقعات ہو چکے ہیں ان کا تو ذکر ہے, جو واقعات ہو چکے ہیں ان کا تو ذکر ہے, لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ. تو جناب ابھی موانا صاحب نے نہ صرف یہ کہ ہمیں تاریخ کے دریچوں سے لے کر آج تک لے آئے, انہوں نے یہ بتایا کہ کلچر از اے سم ٹوٹل آف لائف. آج کے دوستوں کی شرکت کا بہت شکریہ. خوشی اس بات کی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ شمع روشن ہوتی چلی جا رہی ہے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج تعداد بڑی حوصلہ افزا رہی اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. ہمارے اگلے سپیکر اسلامیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل سید صاحب کا وعدہ ہے میرے ساتھ کہ وہ مارکسزم اور پوسٹ ماڈرنزم پر اپنے لیکچر پیش کریں گے. جناب ابھی موانا صاحب آپ کے لیے ریڈ سلیوٹ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ آئے, ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, سو نائس آف یو. بخاری صاحب اس مرتبہ اوورسیز سے بھی ہمارے بہت اچھے جی اوورسیز سے یہاں میرے پاس بھی کافی سارے دوست تھے, فیس بک پر بھی اور ویسے بھی. الحمدللہ اس دفعہ اچھی میٹنگ رہی. بہت شکریہ سب دوستوں کا. اگر ایک آخری جملہ اگر مجھے اجازت جی ہو. جی 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 پلیز حبیب صاحب پلیز. جناب پروفیسر عابد حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور جب بات کر رہے تھے سر تو میرا وہ کنیکشن انسٹیبل تھا اور وہ چلا گیا. عابد شاہ صاحب جو ہیں ہی از این اکمپلشڈ پوئٹ آف انگلش لینگویج. ان کی کتاب ہے انگریزی میں, فار بینک انگریزی میں, امریکہ سے چھپی ہے. ہمارے دوست, میرا مینٹور, ایڈیٹر آف مائی شارٹ سٹوریز, اور ہمارے فارمر باس پرنسپل ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 1 کے, اور لور آف نیچر, اور دمان سے جی حبیب صاحب ہم چاہیں گے کہ ہم جی جی ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر زکار صاحب. عابد صاحب کی انہوں نے بات کی, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ایک تو آپ اپنی ویڈیو آن کریں نا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے عابد صاحب جو ہیں یہ ہمارے ڈی خان کے, آج تو بڑے عرصے بعد ان سے اس پہ ملاقات ہو رہی ہے ویڈیو پہ. یہ صرف ڈگری یافتہ پرنسپل نہیں تھے بلکہ پڑھے لکھے پرنسپل تھے. اچھا اچھا اچھا, یہ بڑی یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو بس یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی موقع کم ملتا رہتا ہے ڈی خان جانے کا, اور ورنہ تو یہ آپ کے پیپلز پروگرام میں ہوں تو بڑے اچھے انہوں نے. جی میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پی پی ایف فورم میں جوائن کریں, اور مئی میں چونکہ لیکچر ہے ڈاکٹر عامر سہیل کا, دعوت دیجیے گا, کیونکہ میری آج بڑے عرصے بعد ہو سکتا ہے مجھے بھول گئے ہوں, لیکن یہ ہے کہ عابد صاحب واقعتاً
बड़े पढ़े लिखे और साहिब मुताला और एक अपनी फिक्र रखते हैं और इनकी अंग्रेजी इनका फील्ड रहा है और इनके बड़े चाहने वाले हैं और इनसे इस्तिफादा हम भी हासिल करेंगे, इनके ग्रुप में भी शामिल कीजिएगा। जी वो मुझे सर मैं मशकूर हूँ सर मैं मशकूर हूँ, इनका भी, हबीब मोहाना साहब का भी, आपका भी, आपकी बड़ी करम नवाजी है, आप लोगों ने दावत दी है। हबीब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने लिंक भेजा। आबिद साहब तो मैं अर्ज भी है, खुशी भी है। आबिद साहब मैं अर्ज करूं कि पीपल्स प्रोफेसर फोरम के जो प्लेटफॉर्म है वो तमाम उन दोस्तों के लिए जो प्रोग्रेसिव हैं, जो रोशन ख्याल हैं, वो हर वक्त ओपन है। सिर्फ उनका व्हाट्सएप नंबर दरकार है वहाँ करने के लिए। आप अपने जितने दोस्तों को वहाँ ऐड करना चाहते हैं वो आप मुझे भेज दें, मैं अभी ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम तो इस तलाश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा KPK के लोग वहाँ शिरकत करें। हमारे पास वहाँ तादाद कम है KPK के प्रोफेसर की, तो उनका आना बहुत जरूरी है। मैं एक दफा फिर तमाम दोस्तों को बेहद शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह अगले महीने पहले सैटरडे को शाम 3 बजे फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर ज़का साहब की मोहब्बतों का, अफजाल साहब की मोहब्बतों का, हबीब मोहाना साहब की और आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। भला चीज़ है सही, बस दे रहा हूँ। शुक्रिया जनाब। थैंक यू डॉक्टर हबीब साहब, बहुत शुक्रिया।